السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین حضرات، آج ایک مزیدار آڈیو سننے جا رہے ہیں آپ۔ اس آڈیو کے اندر دیوبندی خود کو کہتا ہے کہ میں کبھی شیعہ بنتا ہوں، کبھی وہابی بنتا ہوں، کبھی اہل حدیث بنتا ہوں، کبھی بریلوی بنتا ہوں۔ اب ایسے دیوبندی اگر دنیا میں موجود ہوں گے تو دیوبندیوں کا بیڑا غرق ہونا لازمی ہے، اور ایسے آڈیو سن کر آپ دوسروں تک بھی پہنچائے تاکہ آپ کے دوست احباب رشتہ دار سب کے ایمان عقائد کی حفاظت ہو۔ دیوبندیت کی گستاخی اور گمراہی اور ان کی تمام خرابیاں اس آڈیو کے اندر دلائل کے ساتھ بتائے گئے ہیں، اور دیوبندیوں کے اعتراضات کا بھی اچھے انداز میں جواب دیے گئے ہیں۔ سبھی حضرات سے گزارش ہے، ہمارا دوسرا چینل ہے ترجمان اہل سنت، جو آپ کو اسکرین پر فوٹو دکھ رہا ہے، اس چینل کو بھی آپ سبسکرائب کر لیجئے۔ اس کے اندر بھی بہت اچھے ویڈیو، بہت بہترین ایمان عقائد کی حفاظت کے لیے اچھے ویڈیو اس چینل پر بھی ملتے ہیں۔ آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے، آج جتنا زیادہ سے زیادہ لوگ اس آڈیو کو سنیں گے، سبھی سے گزارش ہے کہ آپ دوسروں تک بھی پہنچائیں، اور ہمارے دونوں چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور ہمارے مالی امداد بھی کریں۔ دین و سنیت کے کام کے لیے مالی امداد کی بھی سخت ضرورت ہے۔ ایک مدرسہ چلتا ہے، اس کے علاوہ اور بھی دینی تقاضے ہیں۔ سبھی حضرات سے گزارش ہے، ہر مہینہ کچھ نہ کچھ مالی امداد کرتے رہے۔ یہی میرا گوگل پے نمبر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جان مال میں برکت عطا فرمائے، ہر فتنے سے بچائے، اور تمام سنیوں کو زیادہ سے زیادہ دین و سنیت کے کام کرنے کا جذبہ عطا فرمائے، آمین۔ آخر تک سنیں اور ہمارے دونوں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ ہاں جی سمیم صاحب بول رہے ہیں؟ بات کر رہا ہوں جی، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ بہت بڑھیا، بتائیے کون بات کر رہے ہیں؟ حضرت جو ابھی فیس بک پہ آپ جو ہم پوسٹ کیے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد کے تعلق سے، اچھا آپ نے کمنٹ کیا ہے کہ فرقہ واریت مت پھیلاؤ، تو فرقہ واریت کیا ہوتا ہے؟ تو اس میں کون سی غلط بات بولی بھائی میں نے؟ جیسے اب جو صحیح ہے اس کو صحیح کیا جائے گا نا۔ اب جیسے ڈاکٹر اسرار صاحب بول رہے ہیں کہ جھنڈے کو سلامی دینا شرک ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب ان کا وہ تو ہے نہیں، اب جی اب وہ تو امت کو شرک میں ڈبا کے چلے گئے ہیں، تو پھر کس سے پوچھا جائے گا؟ اب آپ ہی ہیں تو آپ ہی سے پوچھا جائے گا۔ آپ ان کا ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو نہیں، جھنڈے کو سلامی دینا شرک ہے، ایسا کب بولا انہوں نے؟ ارے یار ویڈیو ہم پورا تم کو دکھا دیں گے۔ اور ایک اور ہے، اور ایک اور دیکھو بھائی، پہلی بات سنو میری، سنو اگر 3 بار اگر مانگا جائے، ایک بار مانگا تو کوئی بات نہیں چلے گا، دوسری بار مانگا تو کوئی بات نہیں چلے گا، تیسری بار اگر مانگیں گے تو شرک ہو جائے گا۔ بتائیے، مطلب اگر کوئی قبضہ کر لیا، اگر 3 بار مانگے تو شرک ہو جائے گا؟ ارے بھائی میری بات سنو، ان کا کہنے کا مطلب دیکھو، میری بات سنو بھائی۔ ڈاکٹر اسرار نے، آپ نے ایک بیان پکڑ لیا۔ پہلے تو یہ مائنڈ سیٹ کا گیم ہوتا ہے میرے بھائی، ہمیشہ نا مائنڈ کو نا براڈ رکھنا چاہیے، کبھی بھی مائنڈ کو نیرو نہیں کرنا چاہیے۔ ہم کو کسی فرد کو نہیں دیکھنا ہے نا، ہم کو قرآن حدیث سے چلنا ہے نا۔ سنیے، جب آپ سنیں گے نہیں آپ کو پتہ کیسے چلے گا کچھ؟ توصیف بھائی آپ چپ ہو جائیے، بھائی صاحب سے میں بات کروں گا۔ کیا نام ہے بھائی کا؟ آپ جو نیوٹ کر دیں، آپ کے موبائل میں آواز بھی بہت آ رہی ہے، اس میں گاڑی کی آوازیں آ رہی ہے۔ یہ بھائی کا نام کیا ہے؟ شمیم احمد بات کر رہا ہوں۔ اچھا شمیم بھائی، آپ یہ بتائیے، جو فرقہ واریت آپ کہتے ہیں، لفظ فرقہ واریت یعنی ایک فرقہ کو سپورٹ کرنا، آپ شاید گاڑی بھیڑ بھاڑ میں ہے بہت؟ نہیں میں سائڈ، اچھا میں روڈ میں ہوں نا، ادھر آ جاتا ہوں۔ روڈ پہ ادھر چلے جائے، گاڑی کی آواز ایسی آ رہی ہے، آپ کی بات بھی سمجھ میں نہیں آ رہی مجھے۔ ذرا آپ ایسے ذرا سائلنٹ جگہ میں میں سمجھنا چاہتا ہوں فرقہ واریت کیا چیز ہے، تو ذرا مجھے سمجھائیں تاکہ آپ کو بھی اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ فرقہ واریت کے بارے میں سمجھنا بھی ضروری ہے میرے نظر میں۔ اگر آپ کی کوئی غلط فہمی ہے تو وہ بھی دور ہو جائے، میری بھی غلط فہمی بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات۔ جی بتائیے۔ آپ تھوڑا راستے سے ہٹ جائے کہیں سائلنٹ جگہ پہ، تاکہ میں آپ کی بات اچھی طرح سمجھ پاؤں۔ جی کیونکہ میں اسپیکر آن کر کے بات کرتا ہوں، موبائل کان میں رکھ کے زیادہ دیر بات کرنے سے ذرا سر درد کرنے لگتا ہے۔ اب سائلنٹ جگہ پہ آ گئے، سائلنٹ جگہ پہ۔ اچھا جی شمیم صاحب مجھے بتائیے، فرقہ واریت کا مطلب کیا ہے؟ کسے کہتے فرقہ واریت؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیے کہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم نے کوئی ویڈیو دیکھا کسی شخص کا
किसी भी शख्स का है, वो दीनी है नहीं है, वो शिरकी है नहीं है, वो ईमान वाला है नहीं है, मुझसे वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि कौन कह रहा है, इम्पोर्टेंट है क्या कह रहा है। मेरी नजर में जो अपना हर आदमी का इंडिविजुअल मौकिफ होता है, इंडिविजुअल नजर होती है। ठीक हो गई जी बात। अब आप मेन बात ये है कि मैंने कमेंट्स किया, इन भाई ने वहां लिखा, नीचे पोस्ट डाला कि इनकी किताब में ऐसा लिखा हुआ, इनकी किताब में ये नजज़ी है, इस आलिम के पीछे नमाज नहीं पढ़ना चाहिए वगैरह वगैरह। तो मैंने उस पर लिखा कि भाई किसी को ऐसे सर्टिफिकेट नहीं देना चाहिए, ठीक है, वो अल्लाह के पास नजदीक है। भाई वही है ना वो जिनके बारे में उन्होंने लिखा, वो चले गए ना वहां पे, दुनिया में तो है नहीं ना वो यहाँ पे, जी चले गए वहां पर। तो उन्होंने जो किया तो अल्लाह बेहतर जानता है, या आप ज्यादा जान रही है, वो अल्लाह नहीं जान रहा, बेशक अल्लाह जान रहा ना। तो अब वो वहां चले गए, अब वो जो क्या लिखा उन्होंने, अगर उन्होंने लिखा है तो वो उसके जवाबदार हैं। मैं और आप तो उसके जवाबदार है नहीं, गलत तो नहीं कह रहा जी। मैं आपको। अच्छा अब मेरी शमीम बात आप साहब, सुनिएगा पहले, जी मैंने अब सुन मेरी बात लिया। तो सुन लीजिए। हाँ जब आप सुनाइए। सुनेंगे नहीं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि सुनना नहीं चाहते। नहीं नहीं जब सुना आप आप, सुनेंगे तो आपको पता लगेगा। तो सुनाइए। फिर मैंने उसमें लिखा हो, मैंने बोला कौम को जोड़ने वाली बात करनी चाहिए, बिगाड़ वाली नहीं करनी चाहिए। अगर उन्होंने ऐसा कुछ लिखा है, पहली बात तो मैं गारंटी देता नहीं उसकी कि वो उन्होंने लिखा है, क्योंकि उनके जो मानने वाले हैं, उनके जो असल फॉलोअर्स कह लो एक तरह से, या ऐसा समझ लो जो उनको सपोर्ट करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि ये तो उनकी जिंदगी के बाद लोगों ने उनकी किताबों को तब्दील कर देगा, उनकी नजर में बहुत अच्छे हैं। अब वो कितना सच है कितना झूठ है भाई, ये तो दो ही चीज हो सकती है, या तो आप जी भी जी ऊपर जाएं, शमीम साहब, भाई आप भी जब ऊपर आप जाएं बात और करें, वहां मैं जाके अभी सर्टिफिकेशन करें इसका। हम जी दोनों एक दूसरे को समझना चाहते हैं, तो इस वजह से ना हाँ आप जितनी देर जरा बात को जरा जरूरी जरूरी बात ही करें, शॉर्ट करने भाई, की जरूरी कोशिश तो करें। बताया मैंने, इसके लिए ना देखो ऊपर जाना थोड़ा पड़ेगा सुने अल्लाह के ना, पास। आप मेरी बात अधूरी में बीच में ना काटे। मैं ये शुरू में जी बात इसलिए कंडीशन लगा रहा हूँ ताकि आपको भी हमारी बात समझ में आए और आपकी भाईजान एक बात भी बात मुझे सुनो, जब समझ आप में आए। आप अब आप सवाल ही सवाल करोगे सवाल ही सवाल और नहीं जवाब कर रहा हूँ सामने वाले का मैं सुनोगे नहीं। गुजारिश कर रहा हूँ, सवाल भी नहीं किया, आप बीच में बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ आप कितनी देर बात किए, उतनी आगे जब बात करेंगे ना तो जरूरी जरूरी बात ही करें और मुझे भी बोलने दें। मैं भी आपकी जो बातें मैंने सुना इतनी देर से, उन बातों में मुझे लगा कि आप जरा पढ़े लिखे हैं, जरा नहीं अच्छा पढ़े लिखे नहीं हम हैं, तो आप जाहिल है भाई साहब, हम ग्रेजुएट तो हैं। जाहिल है, इतना कोई खास तो पढ़े लिखे बात, नहीं, लेकिन आप क्या काम करते हैं शमीम साहब? बस टाइम पास चल रहा है जी दुनिया में। नहीं टाइम पास तो है, दुनियावी कारोबार बिजनेस क्या है आपका? बस कट रही है भाई जी, रोजी अल्लाह रोजी रोटी दे रहा है। रेस्टोरेंट है हमारा ना, रेस्टोरेंट चलाते हैं हम, छोटा मोटा एक कौन सा बेस्टमेंट? रेस्टोरेंट चलाते हैं। रेस्टोरेंट, अच्छा होटल। जी अच्छा जी। शमीम साहब, आप जो कह रहे हैं कि किसकी बात कर रहे हैं वो सुनना चाहिए, कौन कह रहा है वो नहीं सुनना चाहिए, तो एक बात हदीस, देखो, जो अगर अच्छी बात है आप किसी से भी सीख सकते हो, कोई अच्छी चीज लग रही है ये आपको। ऐसे आपके, आप देवबंदी है या अहले हदीस है या किसी और हम फिरके तो से? भाई हम किसी, मैं मेरा पर्सनल मानना ये है कि मैं किसी फिरके से नहीं हूँ। मेरा मानना ये है कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाला आदमी हूँ, क्योंकि अब वो किस फिरके में आते मैं उसी फिरके का हूँ, नहीं इस मैं अपने जमाने ऊपर में, कोई टैग नहीं लगाता। हाँ बात, आप जब कहेंगे बात करके खामोश हो जाए, फिर मुझे भी उतनी देर बोलने दें, फिर आप 2 मिनट जी पूरा मुकम्मल, 2-3 मिनट बात मुकम्मल कर लें मैंने बता ताकि दिया मैं, आपको। हाँ बोल दिए। अब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हम्म, एक हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया कि जी मेरी उम्मत में एक जमात हमेशा हक पर कायम रहेगी और हर जी दुश्मन उस जमात को ख़त्म करने की कोशिश करेगी, लेकिन वो जमात ख़त्म नहीं होगा। क़यामत तक जी हमेशा हमेशा वो जमात कायम रहेगी, जब तक जी इमाम महदी का ज़ुहूर न हो जाए, इमाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ना लाए, यहाँ तक कि जी सूरज मगरिब से तुलू होने तक वो जमात कायम रहेगी। तो जी। आपके नज़र में कोई तो भी एक जमात जो हक पर हो, वो जमात आपने पहचाना, आपको मिली है, ऐसा नहीं आपको नहीं लगता? नहीं, मैं अब आपने बात कह दी, मैं जवाब दूं आपको। जवाब दीजिए। हर आदमी को यही लग रहा है कि वो वाली जमात वही है, जी समझ पा रहे हैं मेरी बात। और अब हाँ शिया कहता है सुन्नी काफिर, सुन्नी कहता है शिया काफिर, शिया के फिर अंदर अंदर अलग मर्द टुकड़े हो गए, और फिर सुन्नियों में तो आपको बताइए देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, दुनिया भर के बट्टे हुए। तो सबको ये लग रहा है वही हक पे, जन्नत का सर्टिफिकेट उन्हीं के पास है। तो सबको, इस आगे इस देखिए, दौर में सुन तो आपको लीजिए भी, आप मेरी बात हजरत, बोलिए मेरी बात बोलिए। तो सुन लीजिए। इस दौर में दो चीज मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल व्यू है, मैं किसी के ऊपर थोप नहीं रहा हूँ, ना मैं किसी को थोपता हूँ। जी पर्सनल मेरा मानना यह है कि इस दौर में सबसे बेहतरीन जो सीधा रास्ता है, जो कुरान चीख चीख के कह रही है, वो है कुरान, और दूसरा है सही हदीस।
اس کے علاوہ تیسری جو بات ہے، اگر کوئی بات بتا رہا ہے، چاہے وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کہہ رہے ہیں، وہ ڈاکٹر طارق جمیل صاحب کہہ رہے ہیں، یا ڈاکٹر کو کوئی اعلیٰ حضرت کے بیچارے وہ ماننے والے وہ کہہ رہے ہیں، ہمیں یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ وہ کتاب میں اویلیبل ہے تو اس کو مان لو، صحیح حدیث میں اگر نہیں ہے تو پھر اس کو چھوڑ دو، بس ختم بات۔ جی اچھا، آپ نے جو کہا کہ ہر آدمی کا ماننا ہے، آدمی کا کیا ماننا ہے اس پر آبجیکشن نہیں ہے، اس پر کوئی بھی ہمارا رائے نہیں ہے۔ ہماری بات یہ ہے کہ اللہ کے، جیسا آپ نے کہا قرآن و حدیث، جس کے بعد قرآن و حدیث سے ثابت ہو، جس کے عقائد، سب سے پہلے ہم دیکھنا ہے عقیدہ، عقیدہ اگر صحیح ہے پھر اس کے بعد دیکھنا ہے عمل۔ اب آپ دیکھیں شیعہ سنی، شیعوں میں بھی فرقے میں بٹ گئے بہت سارے، سنیوں میں بھی بہت سارے فرقے ہو گئے، بٹ گئے۔ تو یہ جتنے بٹے ہوئے ہیں ان میں سے جو آپ کو قرآن و حدیث کی سب سے زیادہ نزدیک آپ کو لگتا ہے، قرآن و حدیث کے سب سے زیادہ قریب ہے آپ کی نظر میں، وہ کون سی جماعت ہے؟ میں آپ کا اوپینین پوچھ رہا ہوں تاکہ ہو سکتا ہے آپ کی بات کے میں ایگری کروں یا پھر بھائی میں کیسے کسی کو سرٹیفکیٹ دے سکتا ہوں؟ آپ مجھے بتاؤ نا، میں کیسے ہر سرٹیفکیٹ دے انسان سکتا ہوں؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ اس امت کو فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یہ درمیانی امت ہے۔ درمیانی امت کا ترجمہ محدثین نے، مفسرین نے فرمایا کہ درمیانی مراد ہے کہ معتدل، متوسط اور عادل امت، یعنی انصاف کرے گا۔ آپ انصاف کی کیٹیگری میں ہر چیز دیکھ کر جب بولیں گے، کوئی فیصلہ کریں گے تو انصاف کی نظر سے آپ فیصلہ کریں گے۔ تو ہر امت کو اللہ نے جج بنایا، عادل بنایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تو وہ آپ بھی عادل ہے، آپ بھی جج ہے۔ تو آپ یہ فیصلہ بتائیں مجھے کہ کون سی جماعت زیادہ قریب آپ کو لگتا ہے؟ اگر آپ میرے سے پوچھ، میں وہی تو بول رہا ہوں نہیں، آپ کے بھائی، پرسنل میں تو اوپینین پوچھ رہا ہوں میں، ابھی یہ بھائی نہیں کہ آپ کس میرا فرقے سے ایسا ہو ماننا ہے، میری نہیں ہو، سنو آپ بات، کا کیا اوپینین ہے وہ پوچھتا ہوں۔ میں نے آپ سے بتایا نا، دیکھو میرا اپنا پرسنل ماننا ہے کہ جب محبت کی بات آتی ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں سے، تب میں شیعہ ہو جاتا ہوں، ٹھیک ہوگی بات؟ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بات ہوتی ہے تب پھر میں جو ہے بریلوی سنی ہو جاتا ہوں، آگے بس۔ اور جب حدیث پہ اور فتنے سے بچنے کی بات چلتی ہے تو پھر میں دیوبندی سنی ہو جاتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح میرا معاملہ ہے، اور جب قرآن حدیث کی بات ہوتی ہے تو پھر میں صحیح حدیث پہ جاتا ہوں، تو پھر میں اہل حدیث ہو جاتا ہوں۔ تو میرا ایسا ماننا ہے، میں تو اس طرح کا تو سوچنے پھر والا آپ آدمی کے ہوں۔ اس میں ہر اور فرقے حق پر ہے، یہ جتنے نہیں تو فرقے اللہ ہیں ہر بہتر جانتا فرقے ہے، میں حق کسی کو پر کیا ہے۔ سرٹیفکیٹ دوں بھائی؟ میں کسی کو سرٹیفکیٹ نہیں دے جو سکتا نا، اللہ کے نبی آپ دے نے دیں جو کسی کو سرٹیفکیٹ فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ آپ کے لیے دیکھیے، فرمایا کہ آپ جو بتا رہے ہیں وہ صحیح ہوگا، اللہ کے نبی نے آپ کا نام لکھا اس میں یا آپ کی فرقے کا نام لکھا؟ اچھا تو اللہ کے نبی صلی آپ اللہ بتائیے مجھے، علیہ وسلم نے بہت صلی اللہ سارے علیہ چیزوں وسلم۔ کا نام نہیں لکھا، نہیں بتایا، اس نام ایگزیکٹلی، سے جو بھی چیزیں، بہت سارے ایسی باتیں بتاؤں گا جو ابھی دیکھیے مسجدوں میں مینار نہیں بنائے تھے صحابہ اکرام نے، بعد میں بنائے، مسجدیں کچی تھی نہیں بعد آپ میں غلط پکی بول رہے ہیں، بنائے۔ آپ غلط بول تو رہے ہیں، صحابہ کے ٹائم پہ تو میناریں تھی نا بھائی، مسجد نبی اور جتنے میرے صحابہ علم کے میں، زمانے ہاں میں کون سی ہاں میناریں میناریں تھی؟ تھی، مطلب جتنے مجھے نالج ہے میناریں تو بننی شروع ہو گئی تھی۔ نہیں، مسجد نبی اس وقت کچی مٹی کی میں تھی۔ مسجد نبی کی، اچھا دوسرے سب سے جی پہلی بولیے مسجد بولیے، تو مسجد نبی ہے، جی اور بولیے، آپ حضور بولیے کے بولیے۔ زمانے میں مسجد نبی کچی تھی، اور مسجد نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دوبارہ بڑی کر جی کے توسیع کر کے بنائی گئی۔ تو جی جب جی دوبارہ جی بنائی تو حضرت عمر نے جی فرمایا مسجد بناؤ، مسجد میں کلر کرنا بھی منع ہے، کلر بھی نہیں کرنا، اس میں نقشہ بھی کرنا منع ہے، اس میں ٹائلز، بہت ساری چیزیں حضرت عمر نے منع فرمایا کہ مسجد میں اس طرح کوئی شو میرے بازی علم میں نہیں نہیں ہوگا، ہے، جی بالکل سادگی کے ساتھ نبی کے زمانے میں جیسا تھا ویسا ہی ہوگا، صرف لمبا جی چوڑا کیا جائے گا تاکہ زیادہ لوگ اس میں گنجائش ہو سکے۔ تو جی باتیں ہیں جی نا، بہت ساری چیزیں، نام نہیں بتایا، پہچان نہیں بتایا، اس کے بعد صحابہ کرام کے یہ میرے علم دور میں ہے میں، نہیں، جو آپ نے بات بتایا نا میں انشاءاللہ اس کی تحقیق کروں گا کہ سنیے، حضرت عمر رضی صحابہ کے اللہ دور تعالیٰ نے میں، ایسا کہا کیا۔ وہ اصل بات نہیں ہے، جی اصل میری بات یہ ہے کہ جی صحابہ کے دور میں جب ضروری قرار دیا گیا کہ اب اہل سنت کہنا چاہیے، کیونکہ صحابہ کے دور میں ہی جب حضرت عثمان کے قاتل خود کو مسلمان کہنے لگے، اور مسلمان وہ بھی حضرت عثمان کے قاتل، اور حضرت علی کو کافر قرار دینے والے بھی خود کو مسلمان کہنے لگے، نعوذ باللہ۔ تو دونوں گروہ کو الگ الگ کر کے ایک خارجی قرار دیا گیا، ایک رافضی قرار دیا گیا، تیسرے بیچ میں آئے اہل سنت و جماعت۔ تو نام جی نہیں تھا، پھر اہل سنت کس وجہ سے کہا گیا؟
क्योंकि ओनली मुस्लिम जो थे सहाबा इकराम, ओनली मुस्लिम, क्योंकि उस वक्त दूसरे मुस्लिम गिरोह नहीं थे, हजरत उस्मान के कातिल नहीं थे, हजरत अली को काफिर कहने वाले, मुशरिक कहने वाले नहीं थे। तो ऐसे मुसलमान, जब सारे मुसलमान ही एक ही कलमा पढ़ने वाले, एक ही तरह के मुसलमान थे, फिर दूसरा कैटेगरी बनाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जब बदअकीदा घुस गए मुसलमानों के अंदर, फिर गैर मुस्लिम जब इस्लाम के अंदर आएंगे तो गैर मुस्लिम कौन सा इस्लाम कबूल करेंगे? उस्मान के कातिल का इस्लाम कबूल करेंगे या हजरत उस्मान के मानने वालों का इस्लाम कबूल करेंगे? हजरत अली को काफिर कहने वाले का इस्लाम कबूल करेंगे या हजरत अली की तरफदारी करने वाले इस्लाम कबूल करेंगे? तो ये कंफ्यूज गैर मुस्लिम को दूर करना था, गैर मुस्लिम के कंफ्यूज, ताकि गैर मुस्लिम इस्लाम के सही रुख पहचाने, इस्लाम के सही चेहरा पहचाने। इस वजह से सहाबा इकराम ने अहले सुन्नत व जमात करार दिया, वरना अहले सुन्नत नाम तो नहीं था। फिर उसी तरह 100 साल पहले भारत के मुसलमानों को देखें, 100 साल पहले 1% शिया था, 99% सुन्नी था, कोई अहले हदीस नहीं था, कोई देवबंदी नहीं था, कोई बरेलवी नाम नहीं था। फिर झगड़ा कहाँ से शुरू हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ। झगड़ा यहीं से शुरू हुआ। सबसे पहले एक मसला छिड़ा, आप तारीख उठा के देखिए, उस मसले पर दिल्ली जामे मस्जिद में मुनाजरा हुआ था इस्माइल देहलवी के साथ अल्लामा फजल हक खैराबादी, ये दोनों के दरमियान मुनाजरा हुआ था। तहकीकुल फतवा किताब का नाम है, उसके अंदर मुनाजरा मौजूद है। और इस्माइल देहलवी ने सबसे पहले ये शरारत की अंग्रेजों के इशारे पर, के कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करोड़ों हो सकता है, अल्लाह चाहे तो करोड़ों मोहम्मद पल भर में पैदा कर सकता है। तो इस मसले पर इस्माइल देहलवी को लाजवाब कर दिया, इस्माइल देहलवी गुमनाम हो गया। फिर 20-30 साल के बाद उलमा देवबंद खड़े हुए, इस्माइल देहलवी को फिर आगे बढ़ाया। 20-30 साल जिल्लत की वजह से चुप रहा, उलमा देवबंद ने फिर इस्माइल देहलवी को, उसकी तालीमात को फिर से आगे बढ़ाया। फिर उलमा देवबंद उसकी तालीमात को आगे बढ़ाते हुए, वो उलमा देवबंद कौन थे, कौन उलमा देवबंद थे उस वक्त? उस वक्त अशरफ अली थानवी, कासिम नानूतवी, रशीद अहमद गंगोही, खलील अहमद अम्बेठवी, ये महमूदुल हसन देवबंदी, ये 5 देवबंद के बड़े बड़े उलमा इस्माइल देहलवी के मरने के 30 साल के बाद ये उलमा जाहिर हुए। जब ये उलमा जाहिर हुए, उस वक्त तक आला हजरत के उतनी शोहरत नहीं थी। आला हजरत के बरेली के नवाब थे, आला हजरत के बाप दादा परदादा बरेली के नवाब थे, मालदार और बड़े अच्छे घराने के थे और आलिम घराने के थे। पूरे इंडिया और इंडिया के बाहर उनको भी पहचानते थे, लेकिन इतनी ज्यादा शोहरत नहीं थी, पहचानते थे। तो सबसे पहले ये देवबंद के जो 5 उलमा का मैंने नाम लिया, एक तो उन्होंने इस्माइल देहलवी के गुमनाम नाम को आगे बढ़ाया और कुछ किताबें लिखे जिसमें कुछ गलतियां और ज्यादा बड़ी बड़ी गलतियां थी। इस्माइल देहलवी से भी बड़ी गलतियां उन्होंने की। फिर आला हजरत उठे, आला हजरत उठकर कहा कि देवबंद के उलमा, तुमने जो जो किताबें लिखे हो, इन किताबों में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हैं, कुफर है, नबी की शान में गुस्ताखी है। मैं मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, किताब में लिखा गया। यहाँ लिखा गया कि नबी के जैसा मैंने देखा, भाई ने भेजा। हाँ बताइए, अब बताइए, आगे बताइए। वो देखा मैंने, भाई ने लिखा है ना। हाँ, नबी के जैसा इल्म तो पागल को भी है, ऐसा कहा। यहाँ तक कि ये कहा कि शैतान का इल्म नबी से ज्यादा है, और ये कहा कि हुजूर के बाद भी अगर कोई नबी आए फिर भी हुजूर ही खातिमुन नबीयीन होंगे। हुजूर के बाद अगर कोई नबी पैदा हो फिर भी हुजूर खातिमुन नबीयीन रहेंगे। ये तो चर्चित है, आप कोई नई बात बता रहे, तो सभी लोग बताते हैं आजकल यूट्यूब में बैठे। ये जब बातें हुई, आला हजरत ने इन बातों का जवाब दिया। जवाब देने के बाद आला हजरत ने उनको समझाने की कोशिश किया, कहा कि देखो भाई, ये गलती की है तुमने, तुम गलती से तौबा कर लो, सही रास्ते पर आ जाओ। इन किताबों को फैलाने से उम्मत गुमराह होंगे, उम्मत बटेंगे। अभी 99% सुन्नी है, हम सब सुन्नी है। मौजूद आला हजरत ने आपको ऐसा कहा जो आप वर्ड्स बता रहे हैं? सुनो ना, मैं वो आपको बता रहा हूँ, 99% सुन्नी ही थे। ये अशरफ अली थानवी, गंगोही, नानूतवी सब सुन्नी ही थे, शिया नहीं थे। फिर इन लोगों ने कहा कि नहीं, हम सही रास्ते पर हैं, हमारा कहना जो भी कहना है सही है। अब आला हजरत सिर्फ कह सकते थे, उन्होंने कोई एक्शन तो नहीं ले सकते कि उनको कत्ल कर दे, उनका गर्दन उड़ा दे, ऐसा तो नहीं कर सकते थे ना आला हजरत। तो आला हजरत नहीं कर सकते थे,
जिन देवबंदी उलमा ने गलत जो किताबें गुस्ताखे लिखी, रसूल है बिल्कुल कर सकते हैं, आपके नजदीक तो आपको पता होगा कर सकते थे। आज तो सारे कोई गैर मुस्लिम बात कर देता है तो सब बोलते हैं सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। आप उस वक्त क्यों नहीं कर सकते थे? अच्छा उस वक्त सुनिए, तो पावर इस होगी वक्त बिल्कुल। मतलब एक सुनिए, लॉजिकल मेरा ऐसा क्वेश्चन है, एक नॉर्मल। हाँ जी जी, आपके क्वेश्चन का मैं जवाब देता हूँ। तो भाई वो इस आशिक वक्त रसूल हो, थे, जब उनको पता था कि मैंने मरने के बाद सीधा जन्नत में ही जाना है, सर्टिफिकेट था उनके पास, तो उन्होंने क्यों नहीं कर दिया? सुनिए कर ना, देते वो। आपने सवाल किए, सवाल सवाल पे जी। सवाल करेंगे तो एक ही सवाल बार बार नहीं, मैं तो एक दोहराएंगे ही तो सवाल नहीं। पूछा भाई साहब, आप तो वही कंटिन्यू बोल रहे हैं, मैं तो आपका सवाल वही एक ही जवाब सवाल दे किया। रहा हूँ, वही जवाब दे रहा जी हूँ कि जी आला जी। हजरत जो आलिम है ना, कुफर का फतवा दे या फिर गुस्ताखी का फतवा दे, गुस्ताख पर हुक्म लगाए, उस हुक्म को लागू कौन करता है, उस हुक्म को नाफिज कौन करता है मालूम है? जैसे इस्लामी जी नहीं। हुकूमत है, इस्लामी जी हुकूमत में काजी आलिम होते हैं। काजी का बिल्कुल। काम क्या है? काजी का काम जी हुक्म सुनाना और जी। हुक्म को नाफिज करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत जैसा जिम्मेदारी यहाँ होती पर है, अभी बिल्कुल सही है। देश में भी अभी कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, कोर्ट है। कोर्ट जी ने हुक्म जी सुना जी। दिया फलाना, जैसा आप शमीम, आपका नाम क्या है? शमीम है ना? जी शमीम मुजरिम है कह दिया कोर्ट ने, जी तो जी। कोर्ट वाला पकड़ने आएगा, काजी पकड़ने आएगा या पुलिस पकड़ने आएगा? पुलिस पकड़ने आएगी। आपको मुजरिम मुजरिम सुनाते ही कोर्ट सुनाएंगे, फौरन आपको पुलिस पकड़ने आएंगी। तो इसी तरह आला हजरत समझ का गया मैं काम आपकी था बात, सुनाना। आगे बताइएगा आप। अब इस दौर में जी भी, इस वक्त में भी अगर कोई सर तन से जुदा का हुक्म दे रहा है, हम सर तन से जुदा का हुक्म देना, जो गुस्ताखे नबी है वो सर तन से जुदा, वो शरई हुक्म है, लेकिन हर कोई कत्ल करने नहीं जाएगा। कत्ल करने का हुक्म हर नहीं किसी को नहीं है, हुकूमत को है। अब जब भाई, हर इस्लामी कोई, हुकूमत मेरी है बात तो तो सुनो। शरीयत के अब कानून के, आपकी, मैं आपकी बात समझ गया, आपका कहने का मतलब क्या है, मेरी बात तो सुनेंगे आप। आपकी बात समझ गया मैं। अभी मैं अभी अभी बात कंप्लीट कर अभी लूं, 2 मिनट, एक अभी मिनट और बात कंप्लीट कर हाँ। लूं, 1 मिनट और बात कंप्लीट कर लूं। तो जी सर तन से जुदा का हुक्म इस वक्त भी कोई दे रहा है, वो देना उनका सही है, लेकिन वो कोई भी बंदा आपके जैसा, हमारे जैसा फौरन जाकर तलवार उठा के किसी को कत्ल नहीं कर सकता। हम सिर्फ हुकूमत को कह रहे हैं, जैसा नरसिम्हानंद सरस्वती जो शैतान जो है नबी का गुस्ताखी कर रहा है, हम सर हाँ तन जी से हाँ जुदा जी। किसको कह रहे हैं? हुकूमत को कह रहे हैं, गवर्नमेंट को कह रहे हैं उसका सर तन से जुदा करो जो हमारे आका की शान में गुस्ताखी करे। हम किसी के धर्म की गुस्ताखी नहीं करते, हम किसी की देवी देवताओं की गुस्ताखी नहीं करते, तुम भी हमारे नबी की ठीक है, गुस्ताखी मत करो, समझे? मैं समझ गया आपकी बात। हाँ, इतना तो हर मैं कोई समझ कानून गया। को हाथ में नहीं ले सकता। कानून कानून का जो रखवाले है, हुकूमत है, वो हुकूमत कानून को नाफिज करे, सही तरीका से कानून लागू करे, समझे? तो आला हजरत के जमाने में भी उस वक्त अंग्रेजी हुकूमत थी और अंग्रेजी हुकूमत जी इन्हीं की तरफदारी करते थे, इस वजह से हम मजबूर थे, हम सिर्फ सुना सकते थे। तब आला हजरत ने जब सुनाया, इन लोगों ने माना नहीं, फिर आला हजरत मक्का शरीफ गए। मक्का अच्छा। शरीफ गए, वहाँ के 300 उलमा, पूरे दुनिया के बड़े बड़े उलमा बैठे, सारे उलमा के सामने आला हजरत ने किताबों के, देवबंदियों की किताब रखने के बाद कहा कि ये किताबों में ऐसा ऐसा लिखा है, उर्दू को अरबी में करके आला हजरत ने बताया। जब आला हजरत ने बताया तो उलमा देवबंद पर अरब व अजम के 300 से ज्यादा उलमा ने कुफर का फतवा वहां से दिया। देने के बाद आला हजरत जब इंडिया आकर वो फतवा इंडिया वालों को दिखाया, भारत के तमाम मुसलमानों को दिखाया, तो तमाम मुसलमान उनसे बचे रहे, उनसे दूर हो गए और उनको नफरत करने लगे। देवबंद के कुछ उलमा सिर्फ देवबंद इलाके में, सहारनपुर और शामली जिला में देवबंदी अच्छा। उस वक्त थे, बाकी पूरा इंडिया में कहीं भी देवबंदियों का नाम निशान नहीं था। फिर इन मौलवियों ने तबलीग अच्छा। जमात चालू किया 1925 में, और अच्छा। तबलीग जमात, इन्होंने अपने अकीदा जाहिर नहीं किया, इन्होंने कहा कि हम अकीदा नहीं बताएंगे, सिर्फ नमाज रोजा, नमाज रोजा, नमाज रोजा, हम किसी फिरके में नहीं पढ़ते, हम किसी को बुरा नहीं कहते, हम सिर्फ नमाज बताते। ऐसा करके उनके अकीदा छुपाकर गांव गांव में नमाज का प्रचार किया। जहां लोगों को पता चला कि यह देवबंदी उलमा अब की तरफ है। अब आपने बहुत लंबी बात कहीं और पहुंच दी, मेरी बात का जवाब देखे ना आपने, सुनी अच्छा मेरी बोलिए, बात सिर्फ आपकी बात का मैं अब जवाब मैं आपकी देता हूँ, बात का जवाब दूं। बोलिए। आप ये जो कह रहे हैं ना कि उन्होंने देवबंदी उलेमा, उस वक्त जो है ना, सारे जितने भी उलेमा थे, इनफैक्ट जो आपने आला हजरत का नाम लिया, सारे साथी थे, ये सारे एक ही ग्रुप के आदमी थे, जो मेरी नॉलेज में है, अलग नहीं थे,
ٹھیک ہے. اب آپ نے ویسا کہا کہ انہوں نے کتابوں میں لکھا، بھائی وہ میرے سامنے اویلیبل نہیں. بات ساری اتنی لمبی، دیکھو اتنا ٹائم تو میرے پاس ہے نہیں کہ میں اس میں صبح سے لے کے شام تک بات کرتا رہوں، لیکن شارٹ کٹ میں آپ کو 2-3-4 باتیں بتاؤں کہ میرا ماننا ہے، مان لیجیے 1% میں دیوبندی مسلمان ہوں، آپ ہی کے حساب سے میں بات کر لیتا ہوں اگزامپل. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہو گیا کہ نہیں ٹھیک ہو گیا؟ اب آپ نے جو بات یہ کہی کہ انہوں نے کتاب میں ایسا لکھا، کتاب میں ویسا لکھا، اس کتاب میں اس میں لکھا، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر انہوں نے یہ بات لکھی جو آپ بتا رہے ہیں تو بھائی وہ اللہ کے نزدیک گناہگار ہے، اور اللہ کے رسول کی نزدیک بھی گناہگار ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس کی سزا کون دے گا؟ اللہ دے گا نا. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں. اب دوسری بات، سب سے امپورٹنٹ بات ہے، مجھے نہیں پتا صحیح ہے غلط ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں اگر یہ بات ایسے ہے جی تو پھر یہ غلط ہے. اب مان لیجئے میں یہ کہتا ہوں کہ میں خود کو دیوبندی مسلمان کہتا ہوں، تو کیا میں نماز میں دیوبند کی کتابیں پڑھتا ہوں کیا؟ یا کیا میں اپنے جو حدیث پڑھتا ہوں میں دیوبندی علماء کی پڑھتا ہوں کیا؟ یا مجھے یہ دیوبندی علماء یہ کہتا ہے، میں سپوز مسجد جاتا ہوں، کسی دیوبند کی مسجد میں جاتا ہوں، میں چلو دیوبند ہی خاص جگہ ہے وہیں چلا جاتا ہوں، وہاں کی مسجد میں جا کے نماز پڑھتا ہوں، تو کیا وہ دیوبند کا علماء مجھے یہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی کلمہ پڑھ، تو دیوبند کے بارے میں پڑھ اور میری کتاب الگ سے پڑھ؟ وہ تو ایسا نہیں کہتے، جو میں سمجھ میں آیا وہ تو صرف قرآن اور حدیث کی بات کرتے ہیں. وہ یہ بھی نہیں کہتے میری لکھی ہوئی پڑھو، اس کے لکھی ہوئی. بھائی صحیح حدیثوں کا سب کو پتا ہے، اس کے ٹائم پہ ڈیجیٹل زمانہ ہے، کتابیں اویلیبل آن لائن بھی آف لائن بھی، فزیکل بھی لے سکتا ہے. تو اس میں پرابلم کہاں ہے؟ جی اور میں نے تبلیغ کی بات، ایک چھوٹی سی اور بات کو آپ کو دے دوں، تبلیغ کی بات بھی سنی ہے میں نے. وہ اچھائی کا راستہ بتاتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، میں تو یہی سنتا ہوں، اور میں نے اپنی کانوں سے بھی سنا ہے. وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں نماز قائم کرو، روزہ رکھو. جی آپ دیکھیے لمبی سوال کریں گے تو سوال کو سمجھانا ضروری ہے نا. سوال نہیں، میں آپ کی بات کا جواب دیا. اب اس میں مجھے یہ آپ یہ بتائیے کہ یہ جو کسی چیز کو ایک دم ٹارگٹ کرنا، کسی بھی چیز کو، انفیکٹ سیاہ، اب میں سیاحوں کے بارے میں نے سنا، ایک چھوٹی سی بات بولوں گا آپ کو، پھر آپ کنٹینیو کرنا. ہم نے سنا کسی سے کہ سیاہ تو جھوٹ تھوک کر دیتے ہیں کھانا. ٹھیک ہو گیا؟ اور مجھے کسی ایک آدمی نے بتایا کہ شیعہ کے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک پروگرام رکھتے ہیں، آنکھ میں پٹی باندھ دیتے ہیں اور عورتوں کو اندر ننگا رکھ دیتے ہیں، اور جس کے ساتھ وہ بدکاری کرتا ہے اور بچہ پیدا ہو جاتا ہے اس کو امام بنا دیتے ہیں. نعوذ باللہ. ایسی باتیں مجھے کسی نے بتائی. اب میں شیعہ لوگ بیچارے ان کے ساتھ میں ملا گلا، ان سے میں نے پوچھا، وہ بولے یار کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ہمارا قرآن الگ ہے؟ کیسی باتیں کرتے ہیں، تھوک کے دینا، یہ کیسی باتیں، مطلب ایسی باتیں اڑا رکھی ہیں، کسی کے بھی بارے میں کوئی بھی کچھ بھی اڑا دیتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ اس طرح کا معاملہ ہے سارا. جی نہیں، معاملہ آپ نے جو سنا تھا وہ بالکل صحیح، 100% صحیح تھا. اور جو شیعہ لوگوں نے آپ کو بتایا وہ بالکل 100% جھوٹ بولا. ان کی کتابوں کے حوالے کے ساتھ، ریفرنس کے ساتھ میں بتا رہا ہوں کہ شیعہ، جیسے آپ کے یہاں سنیے، آپ بولے نا، ابھی مجھے 3-4 سوال کا آپ کو جواب دینا ہے. آپ کو 4 سوال کا جواب دینا ہے، ایک سوال کا. اب لمبی کرتا ہوں تو بھی آپ اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ سوال کا جواب کم سے کم 2 منٹ، ایک بات سمجھانا ہے تو 2-3 منٹ تو لگے گا. تو آپ پھر اور لمبا کرتے جا رہے تو میں کیا بولوں؟ آپ کو سمجھانا ہے میں عالم ہوں. آپ کو پہلے ہی کہا کہ آپ عالم نہیں ہے، تو آپ کا کام صرف اعتراض کرنا ہے، میں جواب دینا ہے. آپ نے اعتراض کیا، جو شیعہ کے بارے میں آپ نے سنا تھا وہ ساری کتابوں میں موجود ہے. 1-2-3 باتیں میں شیعہ کے بارے میں بولوں، اس کے بعد دیوبندی کے بارے میں بولوں گا. شیعہ کے بارے میں جو باتیں ہیں کتابوں میں ہے کہ کوئی سنی کو گندگی کھلائیں گے تو شیعہ کو بہت بڑا ثواب ملے گا. شیعہ مذہب کی کتاب میں ہے، سنی کو کوئی گندگی کھلائے گا تو بھی ثواب ملے گا. شیعہ کے جنازے میں، اگر سنی کے جنازے میں شیعہ آئے گا تو جنازے میں دعا نہیں کرنا اللہم اغفر لحینا، اللہ ہمارے زندوں کے، ہماری مردوں کی بخشش فرما، بلکہ شیعہ آ کر ہمارے جنازے میں اگر کھڑے رہے گا تو کہے گا، وہ اندر سے دل میں یہ کہے گا کہ سنی پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برسے، اللہ کا عذاب اور زیادہ ہو. عذاب کی ہی دعا کرنا ہے اب یہ بات جنازے تو میں آ آپ کر. بتا رہے ہیں تو اس لیے آپ ہی کو سنیے نا، بتاؤ گے بھائی صاحب. پھر بیچ میں اور 1-2 سوال رہ جائے گا، آپ اگر بیچ میں دوسری طرف لے جائیں گے تو. اسی طرح شیعہ کی کتاب میں ہے کہ ان کا قرآن بالکل الگ ہے. ان کا قرآن 40 پارے کی ہے، 17,000 آیات ہے اس قرآن میں. لیکن آج کے شیعہ 17,000 آیات والی قرآن ہمارے سامنے بولتے نہیں. آپ جیسے لوگوں کو جب بات کرنے کا موقع ملے تب بولتا ہے کہ ہمارا قرآن بھی وہی ہے، لیکن یہ سراسر جھوٹ ہے. شیعہ کا قرآن دوسرا ہے. ایک بات ہوئی، شیعہ کی بات اللہ بہتر جانتا ہے جی، میں اب تو ہو کہہ گئی نہیں شیعہ سکتا کی اس بات. بارے میں. آپ کو معلوم ہوگا اس کی، میں آپ ہی بتا رہے ہوں گے. کتاب پڑھا ہوں نا شیعہ کی. میرے پاس 25 کتابیں شیعوں کی ہے.
अरे शियाओं भाई की 25 मेरी बात किताबें तो हैं सुनिए, जिसके अंदर ऐसी अभी गंदगी मेरी है। बात तो सुनिए हजरत, अब मेरी बात तो सुनिए। अब जैसे हाँ हमारी कौम में है सुन्नी के अंदर 50 10 जगह बट गए, ऐसे शियाओं में भी तो बटे होंगे ना, सारे नहीं तो नहीं, एक शिया जैसे की नहीं है जो, ना जो आप बात कह रहे हो। आप शिया की सुनिए भाई, शिया के 38 फिरके हैं जो सबसे पुराने फिरके हैं, और जो सबसे हम्म, ज्यादा शियाओं की तादाद जिस फिरके में ज्यादा है वो है इस्ना हम्म, अशारी शिया है। इस्ना अशारी शिया में हम्म, सबसे ज्यादा पुराना फिरका है, और सबसे ज्यादा शियाओं की गिनती उसी फिरके में शामिल किया जाता है। ये हो गई बात। उसी किताब से, हम्म, उन्हीं की किताब से मैं दलील दूंगा, सबूत मिलेगा। ठीक है, अब आप हो गए शिया की बात हम्म, क्लोज। आप जो है देवबंदी, हम्म, आपने एक सवाल किया कि आप एक आम देवबंदी है और आप हम्म, देवबंदी मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं, क्या आपको अलग चीजें बताए, नमाज अलग तरीका से पढ़ते हैं या कुरान हदीस वो अलग बताते हैं? ये आपने सवाल हम्म, किया। बात यह है कि देवबंदी जो आपको जो भोले भाले आम कम इल्म लोग हैं, उनको हम्म, जितना इल्म ज्यादा होता जाएगा उतना देवबंदियों की जो कट्टर देवबंदी होते जाएंगे उतना कुरान और हदीस से हम्म, दूर होते जाएंगे। अभी तक आपको कोई नहीं बताया कि शैतान का इल्म ज्यादा है, नबी का इल्म कम है। लेकिन आपको जब जब गहराई में मुताला करेंगे, देवबंदी उलमा की सोहबत में आप वक्त गुजारेंगे, ज्यादा ये इस बारे में रिसर्च करेंगे, उस इबारत का हम्म, आप जब जवाब मांगेंगे उनके उलमा की बात ही सुनेंगे, हमारा नहीं सुनेंगे, तो आपको फिर आपको ये बात एक्सेप्ट करना नहीं पड़ेगा। आपकी बात मैं इसलिए नहीं सुनूंगा, मैं आपकी बात एक छोटी सी रोकूं अगर आपको बुरा ना लगे। जैसे आपने मुझे शुरू में बताया कि भाई इस्माइल देहलवी जो है उन्होंने जो है कुछ चीजें गलत लिखी थी और उस वक्त जो है क्या बोलते हैं, फिर आला हजरत ने उस चीज को जो है कंडेम्ड किया, यही कह रहे थे ना आप मुझे? नहीं, मैं ये आपने बताया। इस्माइल दहलवी के वक्त में, इस्माइल दहलवी हाँ, 1838 में या 40 में, 1840 के आसपास में उसकी वो मरा। वो इसमें बालाकोट में उसको मार दिया गया, पठानों ने उसको टुकड़ा टुकड़ा करके कुत्तों को दिया। उसके लाश के टुकड़े, एक दो टुकड़ा मिला था, उसका ये कहाँ पढ़ा आपने? सर कहीं लेके गया था, और उसका ये जिस्म का आपको टुकड़ा किसने टुकड़ा बताई करके अब जंगली जानवरों को ये दिया था। किसने बताया आपको कि ऐसा हुआ था? ऐसा हुआ था, किताब में मौजूद है। उसके लाश, उसके पीछे आपकी जो अपनी किताब है? मैं किताब दिखाता हूँ, किताब के नाम है हयात तैयबा। 1831 में फौत हुए थे वो। हयात तैयबा नाम की किताब है। और अरे उसके, छोड़ो ना, किसने मेरी बात सुनो, मैं किताब में आपके बारे में कुछ भी लिख दूंगा, उसकी एक हिस्ट्री होती है, मेरी बात समझना कि हिस्ट्री होती है। सिर्फ वर्ल्ड में काला पीला हरा नीला पीला सीधा सब मानते हैं उसको, वो एक हिस्ट्री होती है। आप मेरी बात हाँ, समझ रहे हो? नहीं वो बात सलाउद्दीन अय्यूबी हिस्ट्री, रहमतुल्लाह अलैह ने जो सुनो तो कोई किसी दमिश्क के बारे मस्जिद में, फतह की ना, देखो तो उसको आप, सब अंग्रेज भी मानते हैं उसको। अंग्रेज ये मानते मुसलमानों की, हैं। 4 मुसलमानों की लिखी मैं किताबें आपको बताओ एक मुझे बात समझाना चाहता हूँ, आप कोई किसी के बारे में लिख देगा, मैं आपका दुश्मन हूँ, आपके बारे में मैं कुछ भी लिख दूं, आप हाँ, आपके आपके चाहने वाले कहेंगे अरे वो तो दुश्मन है इसलिए लिख दिया। लेकिन आपका हम्म, खास दोस्त, आपका पार्टनर, आपके साथी, आपके उस्ताद या आपके शागिर्द ने जो लिखा है, वो तो हम्म, आपके सारे लोग मानेंगे कि हमारे हम्म, शमीम के बारे में ऐसा लिखा गया। तो उलमा देवबंद हम्म। के बारे में, उलमा देवबंद की किताब में लिखा गया है कि इस्माइल दहलवी के बाद में लाश के टुकड़े, सिर्फ सर मिला था, सर मिला था, और फिर जिस्म के नहीं कई ये कहाँ टुकड़े लिखा कई हुआ जो अलग आपने जगह उसमें मिले। देखो कि कुत्तों ने खा लिया था जैसा कुत्ते को काट आपने जो काट ये के अलग अलग पीस करके टुकड़ा टुकड़ा कर दिया था उसको, क्यों? उसने नबी की शान में गुस्ताखी की, और वहां आपको ना अंग्रेज, थोड़ी सी थोड़ा हजरत आपने कहा मैं उलेमा की किताबें आप ठीक पढ़ा करो। जो इस्माइल देहलवी का जो इंतकाल हुआ ना, हम्म एक सिख समुदाय का सोल्जर था, ठीक है, बालाकोट में, उनके हम्म द्वारा मारा गया था। वो क्योंकि उन्होंने ये फतवा तो दिया, आपको पता है? ये तो ये पता है आपका, आपको, ये वर्ल्ड। सुनिए, हाँ, हाँ। किताब मेरे पास मौजूद है, किताब का नाम है अरवाह अरे भाई सलासा। मेरी बात सुनिए ना, मैं आपकी किताबें थोड़ी ना मानूंगा, मैं तो वो मानूंगा जिसको काला भी मान रहा, बूढ़ा भी मान रहा, अनपढ़ भी मान रहा। एक किताब जिसको होती है जो सिर्फ बूढ़ों के देवबंदी द्वारा माने, लिखी जाती जिसको है। नहीं सिर्फ नहीं नहीं देवबंदी ही माने, देवबंद के अरे अंदर भाई की बात, हिस्ट्री होती है यार, वो तो मानेंगे ना, हिस्ट्री जो देवबंदी होती लोग है। ही मानेंगे उसको। क्योंकि देवबंद अपने मौलाना की बुराई तो वो नहीं करेंगे ना, अपने मौलाना की तारीफ ही करेंगे। देवबंद की किताब देवबंद से छपी हुई अरे है। भाई आपको ये पता ही नहीं, आप ये पता है आपको जो आपने कहा ना बालाकोट में किसके खिलाफ लड़ रहे थे वो पता है आपको? बालाकोट में मुसलमान पठानों के खिलाफ लड़े थे कौन? इस्माइल दहलवी। अरे यार बस आप भाई ये, अरे यार कहते आप हैं, मैं किताब के हवाला मेरे पास है,
وہ گیا تھا وہاں کیونکہ وہ لوگ بدعت اس کے نظر میں شرک کر رہے تھے، اور جنگلوں میں جب جا رہے تھے اسماعیل اب آپ نے دہلوی اپنی سید احمد رائے میں تو بریلوی، کیا ہی بتاؤں پھر. آپ دونوں، آپ بولے تو میں چپ ہو کے سنا، میں پورا 1 منٹ بول کے میں چپ ہو جاؤں گا، پھر آپ 5 منٹ بولیے گا، بیچ میں نہ بولیے گا. میں بول رہا ہوں بالا کوٹ میں جب لڑنے کے لیے جا رہے تھے، راستے میں جہاں مزار تھے، جہاں جہاں جنگلوں میں مزار تھے اللہ والوں کے مزارات، سبھی مزارات توڑتے ہوئے گئے. اور جب پیچھے ان کو ڈھونڈتے ہوئے پیچھے ایک جماعت گئی، جو دیوبندی علماء کی جماعت، جو مجاہدین کی جماعت جس کو مجاہدین کہتے تھے وہ لوگ، تو وہ پیچھے جماعت گئی تو وہ اپنے استاد کو ڈھونڈنے لگے، اسماعیل دہلوی اور سید احمد رائے بریلوی کو ڈھونڈنے لگے. تو ان کو تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے پریشان، 3 دن تک ڈھونڈتے رہے، نہیں ملی. راستے میں ایک مزار توڑے ہوئے تھے، تو وہ مزار دیکھتے ہوئے آگے گئے تو کچھ لوگ ملے، تو بولے ایسے ایسے لوگ ہیں پگڑی باندھے ہوئے، ایسے جبا لباس والے، یہ لوگ کہاں گئے آپ دیکھے ہیں؟ تو ان لوگوں نے بتایا کہ ابھی گئے یہ لوگ مزار توڑتے ہوئے آگے گئے ہیں، اس راستے میں گئے ہیں، ایسا ایسا جاؤ بول کے انہوں نے راستہ دیکھا ہے پیچھے والے، اور کتابوں میں خود لکھا ہوا ہے. تو آپ بتائیے جو وہاں گئے راستے میں مزار توڑتے ہوئے گئے اسماعیل دہلوی اور سید احمد رائے بریلوی، اور وہاں جا کر جس سے لڑے، کتاب میں خود صاف لکھا ہوا ہے سید احمد رائے بریلوی اور اسماعیل دہلوی نے سب سے پہلا جہاد حاکم داغستان یار محمد خان کے خلاف جہاد کیا. یار محمد خان جو حاکم داغستان کے بادشاہ کا نام تھا یار محمد خان. اب بتاؤ یار محمد خان سکھ تھا یا انگریز تھا؟ بھائی جو 1831 میں ان کا جو ڈیتھ ہوئی تھی نا، وہ اسی سے ہوئی، اسی وجہ سے مہاراجا رنجیت سنگھ کے خلاف جو ہے نا اس کا رول تھا وہاں پر بالا کوٹ میں. آپ کو پتا ہوگا یہ بات. رنجیت سنگھ کے خلاف جہاد نہیں کیا کہیں بھی، رانا رنجیت سنگھ کے خلاف جہاد نہیں کیا. جہاد کیا تھا تو حاکم داغستان یار محمد خان کے خلاف جہاد کیا، اور کتاب میں خود لکھا ہے یار محمد خان کے خلاف جھوٹ پھیلایا کہ یار محمد خان نے پیشاب پیتے ہوئے مرا، اپنا ہی پیشاب، کسی فوج نے اس کو پیشاب پلایا، حالانکہ یہ سب جھوٹ ہے. پیشاب کوئی بھی مسلمان پیشاب پی کے مرے گا کیا مرنے سے پہلے؟ لیکن اسماعیل دہلوی کے دشمن ہے بول کر یار محمد خان کے خلاف جہاد کیا بول کے بتایا. کیونکہ پٹھان لوگ سخت گر بریلوی سنی تھے، جو اللہ والوں کے مزار کی تعظیم کرتے تھے، اللہ والوں کی عزت احترام کرتے تھے، اور نبی کے خلاف گستاخی وہ لوگ برداشت نہیں کیے. ان لوگوں نے اسماعیل دہلوی کے خلاف، انگریزوں کے خلاف تلوار اٹھایا. تو پھر ان کو کچلنے کے لیے انگریزوں نے اسماعیل دہلوی کے ساتھ فوج بھیجا، اور سب سے پہلا جہاد یار محمد خان کے خلاف کیا ہے. اور جب یہ لوگ جہاد کرنے جا رہے تھے، راستے میں ایک پادری کھانا پکا کر ان کا انتظار کر رہا تھا. پادری جو عیسائی پادری، انگریز، یہاں تو اس وقت عیسائیوں کی آبادی اتنی نہیں تھی، تو انگریز دیش سے عیسائی پادریوں کو لایا گیا تھا مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کو کھڑا کر کے مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے. اور جن مولویوں کو پادریوں نے ساتھ دیا وہ ہے اسماعیل دہلوی اور سید احمد رائے بریلوی. یہ بہت سازش ہے صاحب شمیم بھائی. آپ یہ سازش آپ گہرائی سے پڑھیں گے تب آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کتنی بڑی سازش ہے. اسی لیے لیکن میں کسی کی لکھی میں وہ پڑھتا ہوں جو ورلڈ لیول پہ مانی جاتی ہے. ایسا نہیں کہ جو آپ لکھ دو گے یا چار لوگ لکھ دیں گے وہ بات مان لی جائے گی. 4 لوگ سارے لکھے ہو، آپ بار بار وہی بات بول رہے ہیں 4 لوگ لکھے. جو کتاب دیوبند سے چھپتی ہے اس میں دیوبندی لوگ خود اپنی برائی کرے گا کیا؟ نہیں میری بات سنو نا، میں نے بھی آپ کو سب سے پہلی بات یہ بتائی. اب دیوبند سے کوئی کتاب چھپی، ایگزامپل سمجھنا، تو کیا میں اس کے حساب سے نماز پڑھ رہا ہوں کیا؟ اچھا، تو اس کا جواب دیجیے. دیوبند کے 5-6 عقیدہ جو آپ جانتے نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. میں نے ابھی عقیدہ کا جواب دیا نا، ابھی آپ کو، ابھی کھڑے میں نے آپ کو جواب دیا نا. کھڑے آپ یہ بتائیے، آپ دیوبندی علماء کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں، دیوبندی علماء آپ کے نظر میں مسلمان ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، بالکل ہے. تو میں آپ کو یہ پوچھوں کہ آپ بتائیے اللہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ کیا جواب دو گے؟ میں نے آپ کو میں نے کیا بولا، سنا نہیں میری بات؟ مجھے یہ بتا دیجیے، ایک سوال کا جواب دیجیے آپ، پھر میں اگلا سوال کروں گا. ایک سوال کا صرف جواب دیجیے، اللہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ بارے میں جواب دے رہا ہوں نا، آپ کا ساری باتوں کا جواب ایک ہی بارے میں دے رہا ہوں کہ اگر انہوں نے ایسا لکھا ہوا جیسے آپ بتا رہے ہیں تو میں تو بالکل اس کو بات کو نہیں مان سکتا کہ یہ بات انہوں نے صحیح لکھی ہے. اچھا، تو بات کو سمجھ گئے؟ آپ کا کنفرم نہیں کہا، آپ نے اگر کہا
अगर अरे लिखा है कंफर्म तो क्यों नहीं गलत कहा लिखा यार, है। कैसी तो बातें अब कर रहे हम हो? तो बता जाहिर रहे सी हैं, बात है, मैं अब कैसे कह दूं कि उन्होंने लिखा बात है? हो उनके गई। जीते आप जी, आपने बताया उनके जीते कंफर्म जी नहीं है, मैं अगर, बता रहा अरे हूँ, मेरी बात तो सुनो सबूत दे हजरत। रहा हूँ, सुनिए ना, सबूत दे रहा हूँ कि उलमा देवबंद ने एक नहीं 4 किताबों में लिखा है, अगर नहीं कंफर्म है। जब कंफर्म हो गया मैं आपको और बता आप तो रहा हूँ, कंफर्म अब मेरी देखने के बात तो बाद सुनो। अभी सुनिए, आपने मुझे सबसे पहले, अभी आपकी बात का जवाब देता हूँ। सबसे पहले आपने मुझे कहा इस्माइल देवली ने अपनी किताब में लिखा और आला हजरत ने ऐसा कहा, जबकि दोनों, जब इस्माइल देवली पैदा भी नहीं हुए, इस्माइल देवली जो है 1769 यानी कि 1 में पैदा हुए। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? मैं आपसे क्या कहा कितने था, 1700 में पैदा हुए आपने और वो मेरा पैदा हो रहे 1856 में। मैं पूरी बात आपसे कहा, आपने सुना नहीं और आप मेरी बात हम्म, समझे नहीं, आप एतराज कर रहे हम्म, हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि इस्माइल देहलवी के खिलाफ जिन्होंने फतवा दिया वो आला हजरत नहीं थे। मैं पहले कह हम्म, चुका था, आपने सुना नहीं। इस्माइल देहलवी के खिलाफ जो फतवा दिया है उनका नाम है अल्लामा फजल हक खैराबादी। फजल हक खैराबादी जब आला हजरत पैदा नहीं हुए थे, इस्माइल देहलवी के खिलाफ फतवा दिया। फतवा देने के बाद फिर दोनों में झड़प हुई, जैसा आपस में जो तकरार हुई, बहस मुबाहसा हुई। उसके बाद दिल्ली जामे मस्जिद में मुनाजरा तय पाया। मुनाजरा में हम्म, इस्माइल देहलवी की शिकस्त हुई। वो किताब हम्म। तहकीकुल फतावा किताब में मौजूद है। वो जब हाँ मुझे पता है भाई, हारा, पता है मुझे। इस्माइल देहलवी जब हारा तो 30 साल तक गुमनाम रहा, मरा। हम्म, इस्माइल देहलवी उसके बाद मरा। मरने के बाद 30 साल तक उसका हम्म, नाम निशान नहीं था, गुमनाम हुआ। उसके बाद हम्म, उलमा देवबंद कासिम नानूतवी गंगोही पैदा हुए। गंगोही और कासिम हम्म, नानूतवी जब पैदा हुए, उसके बाद अशरफ अली हम्म, थानवी पैदा हुआ। अशरफ अली थानवी के हम्म, बाद खलील अहमद अम्बेठवी और हुसैन अहमद मदनी, महमूदुल हसन देवबंदी, इन सारे बड़े बड़े देवबंदी उलमा। बाद में इस्माइल देहलवी की जो 30 साल पहले गुमनाम हो चुके थे, उसी बात को फिर से आगे बढ़ाया। जब जाके आला हजरत अच्छा। के साथ इनका झगड़ा हुआ, तब आला हजरत भी पैदा हम्म, हो चुके थे, थानवी भी पैदा हो हम्म, चुका था 30 साल के बाद। समझे? हम्म, मैं एक बार कह चुका, हम्म। आप याद नहीं रखते, फिर आप उसी बात को नहीं दोहराते आपने हैं। आपने वो, नहीं 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 नहीं, मैंने वो जो कह चुका चारों था, आप नाम लिए सुने ना हैं। हम्म, कॉल आप अगर रिकॉर्ड कर रहे हैं फिर से सुन लीजिएगा बात। मैं ये कहना चाहता हूँ, हम्म, तो आपने कहा कि ये बात आप मान ही नहीं सकते कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। तो बात हुई, हाँ तो जिसने लिखा है, बिल्कुल नहीं आप मान सकते। मेरी बात कंप्लीट सुनिए आप। जिसने हम्म, लिखा है अल्लाह झूठ बोल हम्म, सकता है, वो गलत लिखा है ना? हम्म, वो गलत लिखा हम्म, है। अगर उसने लिखा हम्म, है ये बात अल्लाह की शान में गुस्ताखी है और अल्लाह की शान में बिल्कुल गुस्ताखी। गुस्ताखी कुफर है, तो आपने, आपको पता नहीं था अल्लाह झूठ बोल सकता है, जिसने लिखा है पता नहीं था। तो जब आपको पता नहीं चला, ऐसा मैंने सुना है ना लोगों से कि जब लोग ऐसा आपको पता बताते हैं चला, उन्होंने लिखा था। फिर आप उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ सकते। आपको पता नहीं था, भाई इतने उसके दिन से पीछे आप वो तो पढ़ है ही रहे नहीं, उनके थे। पीछे क्या नमाज पढ़ रहा हूँ मैं वो कहाँ है, उनके पीछे पढ़ रहा हूँ कि नमाज में। अब देखिए, जिसने लिखा है वो 100 साल पहले मर चुका है। अब मेरी बात, मैं आपको बात का जवाब दूं। आप, मैं अब आपको ही आपकी बोल रहा हूँ ना, एक छोटी आप सी किसके बात, पीछे जैसे पढ़ आपने रहे मुझे हैं, कहा ना, आप जैसे आपने किसके कहा ना पीछे मुझे पढ़ रहे कि अल्लाह की हैं वो मैं बोल अरे रहा हूँ, हजरत सुन तो सुनिए। लीजिए, हजरत सुन आप तो एक लीजिए, एक आपने मिनट, मुझे कहा एक अभी। मिनट आप उसके बाद बोलिएगा आप, एक मिनट प्लीज। आपने, आप जिसके पीछे नमाज पढ़ते हो वो भी वही बात कहता है अल्लाह झूठ बोल सकता है, वो बात को सही मानता है। जिस मौलवी ने लिखा है उस बात को कंफर्म होने के बाद भी उस मौलवी को रहमतुल्लाह अलैह कहता है, उसकी हर बात से एग्री करता है। तो जब एग्री करना, तो गुनाह को रहमतुल्लाह एग्री कहने करना में भी क्या गुनाहगार प्रॉब्लम है। है? मेरी बात तो सुनो। अभी अब आगे बोलिए। मेरी बात तो सुन लीजिए हजरत। अब मैं आपको बात का जवाब देता हूँ। जैसे आपने मुझे भी बताया कि अल्लाह के खिलाफ बात करना गुस्ताखी, और गुस्ताखी जो है कुफ्र है, तो उसके पीछे नमाज जायज है। अब आपको बात, अब आप कौन सा फोन यूज कर रहे हैं? आप ये मैं आपके हाथ में फोन, फोन कौन सा है? मेरे हाथ में पता नहीं, फोन का नाम मुझे याद नहीं है। यूट्यूब चलाते हैं आप? हाँ, यूट्यूब चलाते हैं। किसने बनाया यूट्यूब, पता है आपको? ये यूट्यूब बनाए हैं ये जिसने भी ईसाई और बनाया है। यहूदियों ने बनाया, ईसाई और यहूदियों ने बनाया है ना। हाँ अब हाँ। ईसाई यहूदियों कौन है? अल्लाह के गुस्ताख है, और अल्लाह की गुस्ताखी चलाई हुई चीजें जो इस्तेमाल करेगा वो क्या है? शिर्क है। उस शिर्क में आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर तो आपके पीछे भी नमाज जायज नहीं हो गई ऐसे। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं ना, नहीं, जैसे हर आपने मुझे वहां यहूदी, पहुंचा दिया ना टोटल, वैसे ही मैं आपको नहीं बता नहीं, रहा हूँ, ये वो बात, वाली बात भी बता रहा हूँ आपको। ये बात बताइए। देखिए, अल्लाह के नबी के ज़माने में ईसाई थे, हाँ हाँ अल्लाह के नबी के ज़माने में भी यहूदी थे, ईसाई थे। तो हाँ अल्लाह के नबी हाँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर ईसाई और यहूदी को अल्लाह का, नबी का गुस्ताख कह के उन पर कुफर का और उन पर कत्ल का फतवा नहीं लगाया। हर यहूदी और ईसाई काफिर है, मुशरिक है। हाँ, वो उनके उनके अकीदे के हिसाब से जो
ایگزیکٹلی اب آگے نہیں بات آپ کی بات عقیدہ، اب اس کو اب آگے بڑھیے، اب آگے بڑھیے، پھر میں آپ کو اس کا جواب دوں گا. ہاں میں بتا جی رہا جی ہوں کہ جی اللہ کے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سلام. میں ہر عیسائی اور یہودی کو صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گستاخ اور کافر کہہ کے ان پر قتل کا فتویٰ نہیں دیا. جو ذمی تھے، جزیہ دے کر مسلم کنٹری میں رہتے تھے، ان کی جان مال کی حفاظت کی. حالانکہ گستاخ ذمی بھی نہیں ہو سکتا، گستاخ عربی ہوتا ہے، اور گستاخ کا قتل صحابہ اکرام کے فتوے سے بھی گستاخ کا قتل واجب تھا. لیکن ہر کافر کو آپ گستاخ نہیں کہہ سکتے، اس کا مذہب ہے. وہ گستاخ یہ ہے جیسا ابھی جتنے عیسائی ہیں وہ کہہ رہا ہے معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. یہ لفظ تو گستاخی ہے. آپ سمجھیے ذرا، اتنی عیسائی بات مت، آپ مجھے سمجھ گیا. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، پھر آپ نے آپ نے مجھے سنیے گوگل نا، آپ اور نے اس کی چیز کی مجھے اتنی ساری باتیں بتا دی. اب میں آپ کو بھی فائدہ ایسے گنا دوں، آپ ایسے گنا دو. جلدی میں یہ بھی تو میں مکمل کہہ رہا. سمجھنے ہاں کے لیے تھوڑا اطمینان سے سننا پڑتا ہے بھائی. سنیے ذرا، بھائی، تو پھر آپ آپ کو بھی تو پورا سننا پڑے سنیں گا نا، گے نا صرف آپ تبھی آپ کو سنائیں گے نہیں سمجھ نا. میں آئے گا، نہیں تو آپ پھر دوبارہ وہی بات دہرائیں گے تھوڑی دیر کے بعد. اس لیے میں بول رہا ہوں ہاں کمپلیٹ سنیے. ہاں عیسائی جب آدھی بات سنیں گے پھر سمجھ میں آ گیا بول کر اب پھر میری بات کو روک دیں گے، ایسا نہیں. مکمل میں کہوں گا تاکہ آپ کو اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے. بیٹھو، آ جاؤ. ہاں، عیسائی کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، تو یہ لفظ تو اللہ کی گستاخی ہے، اللہ کی سارے گستاخی مانتے ہے. ہیں بات، لیکن ان کی سارے عیسائی مانتے ہیں. سارے عیسائی مان رہا ہے، سارے عیسائی اس بات میں لفظ گستاخی ہے. لیکن ہر عیسائی کو ہم کافر کہتے ہیں، کیونکہ کافر کہتے ہیں ان کے مذہب بن چکا ہے، سارے مذہب ایک رولز ہو چکا ہے ان کا کہ یہ اللہ کا بیٹا ماننا ہی ماننا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ. تو سارے اس وجہ سے کافر ہو گئے. لیکن گستاخی کوئی عیسائی جو کہہ رہا ہے، کوئی عیسائی قرآن پھاڑ رہا ہے، کوئی عیسائی جو ہے ہمارے نبی کا کارٹون بنا رہا ہے معاذ اللہ. سارے دنیا کے عیسائی لوگ بھی اس کے خلاف ہے. بہت سارے عیسائی ملکوں نے بھی عیسائیوں نے مسلمانوں کا ساتھ دیا کارٹون بنانے والوں کے خلاف. عیسائیوں نے بھی پروٹیسٹ کیا، انڈیا میں بھی کیا. ہاں ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا آپ کی بات، سمجھ گیا میں آپ کی بات کیا نہیں چاہ تو رہا وہ ہوں. گستاخی نہیں مانتا، وہ عیسائی خود نہیں مان رہا ہے کہ وہ گستاخی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، یہ بات بولنا وہ گستاخی مان رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں کر رہے ہیں، حالانکہ گستاخی کر رہا ہے، محبت میں کر رہا ہے. تو وہ ان کا مذہب بن چکا ہے. تو دنیا میں اہل سنت کے فتوے کے حساب سے ہر عیسائی واجب القتل نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہر ہندو واجب القتل نہیں ہے. ہندو بھی ٹھیک ہے، جینے کا حق رکھتا ہے، عیسائی بھی جینے کا حق ٹھیک رکھتا ہے، یہودی بھی جینے کا حق ٹھیک رکھتا ہے. لیکن جو ہمارے نبی کو ٹھیک. کرٹیسائز کرے، جو قرآن کی توہین کرے، قرآن کو جلائے، نبی کا کارٹون بنائے، وہ گستاخ ہے. جی جی. وہی شخص واجب القتل ہے جو اس ہاں تو طرح کی اسی لیے حرکت کرے جیسے جو میں نے آپ ابھی نے بیان کیا. جیسے آپ نے مجھے بتایا نا، گھما پھرا کے وہاں تک پہنچا دیا تھا آپ نے، تو ہاں، ایسے گھما پھرا کے کوئی بھی کسی کو کہیں تک بھی پہنچا سکتا ہے. نہیں یہ گھما آپ پھرا میری کے بات نہیں کو ہو رہا سمجھ ہے رہے نا، ہیں؟ ہاں، یہ گھما پھرا کے نہیں ہی ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی ہو رہا ہے. میرا ایسا ماننا ہے. علماء دیوبند ارے نے میری کہا بات تو سن لیجیے اللہ حضرت، جھوٹ بول سکتا آپ نے ہے. یہ مجھے، بات وہ ارے عیسائی میری اور بات تو یہودی سن کے، لیجیے. آپ سنیے، وہ بات ہاں، آپ نے جو کہا گوگل آپ کی استعمال بات کرنا کو بھی روکتا ہوں نا گستاخی میں، ہے. سنیے تو حضرت، اتنی بڑی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں نا، آپ کو 2 سیکنڈ میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں. جیسے میں کہہ رہا ہوں، جیسے میں نے کہا کہ وہ بات بالکل جائز نہیں ہے اگر انہوں نے ایسا کہا ہے، ایسے ہی جس کے پیچھے میں نماز پڑھتا ہوں وہ اس کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اگر ایسا نہیں لکھا ہے تو غلط لکھا ہے. آپ بتاؤ. نہیں، وہ ارے تو بھائی، جانتا میں ہے، جس کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، وہ چلو ایک کام جانتا ہے. کرنا آپ کے بھائی، کوئی بھی عالم سنو. لائیے، ارے وہ عالم میری خود بات تو جانتا سنیے. ہے کہ ارے حضرت سن اللہ لیجیے جھوٹ نا، بول سکتا ہے، اس کا سنیے. عقیدہ ہے. وہ ارے دفاع حضرت سن کرتا تو ہے، لیجیے ڈیفینس میری کرتا بات. ہے اس کا. ارے حضرت سن تو لیجیے میری بات. میں آپ کو ہاں ایڈریس بھیجتا ہوں، میں آپ کو ٹکٹ نکال دیتا ہوں لانے کا، ٹھیک ہے؟ اور لانے کے ٹکٹ کے بعد ایک کام کرتے ہیں، انہیں کی مسجد میں چل کے سیم بات پوچھنا. اگر وہ یہ بولے گا نا، سنو میری بات، اگر وہ یہ بولے گا جو آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں ٹھیک کہا ہے اس نے، یا اس کی بات پہ میں بھی اگری کرتا ہوں، تب پھر میں آپ کی یہ بات مان لوں گا. خرچہ میرا، آپ کا آنے کا. اچھا، آپ کہاں رہتے ہیں؟ میں دہرادون رہتا ہوں. دہرادون میں رہتے ہیں. ہاں، دہرادون سے اب وہ آپ کو یہی کہیں گے سنیے کہ انہوں نے لانے یہ کی. لکھا نہیں ہے کتابوں. سنو میری بات، میری بات کو سمجھ، سنو میری بات، کہ کتابوں کو جو ہے گھما پھرا کے لوگوں نے پیش کیا ہے. اور اگر پھر آپ یہ کہیں گے کہ نہیں نہیں سچ بات ہے، تو وہ یہی کہے گا آپ کو کہ اگر یہ سچ بات ہے تو یہ معاملہ اللہ اور اس کا ہے بھائی، ہمارا ایسا کوئی لینا دینا نہیں ہے.
लेकिन बात यह है, अल्लाह लेकिन कुरान में इसमें कहाँ से आ फरमाता है, गई? अब मुझे बताइए, इसमें बात ही सारी खत्म हो गई ना, सारा खत्म सारा कहाँ हुआ? कन्वर्सेशन ही खत्म हो गया। आपने हाँ आपने बिला वजह किसी की नाहक बात की सपोर्ट कर दी और कहीं घुमा फिरा के कहाँ कर दी? घुमा रहे हैं आप। कैसे कर मैं दी? घुमा नहीं रहा हूँ, अब मेरी बात सुनिए जरा। कैसे कर दी? कैसे, इसको कैसे कह देंगे वही आप? मैं बोल रहा हूँ, आप सुनेंगे तो हाँ तब तो ना पता चलेगा। हाँ आप हाँ, सुनाइए देहरादून में रहते हैं, देहरादून से देवबंद भाई। मेरा ऐसा मानना है, मैंने जिन लोगों से मैंने 3 बात घंटे की का है, सफर उन है। लोगों से मैंने बात की। अरे तो सुन सुनिए, लीजिए, मैंने लोगों से बात की है। जब मैंने उन लोगों से बात की, उन्होंने कहा भाई ये सब लोगों ने किताबों को उनकी जो है उनके नाम पर बना के आगे भेजा है, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर उन्होंने ऐसा कहा है, 1% 1% उन्होंने कहा कि मान लीजिए अगर किसी ने ऐसा कहा है तो हम उसका सपोर्ट नहीं करते। और दूसरी बात, मैंने आपको शुरू में कहा था कि जब वो मस्जिद में नमाज पढ़ते तो उन्होंने तो कहीं नहीं लिखा बताया ये कि भाई ऐसा है और ये तुम करो, हमारा अलग से कलीमा पढ़ो। अब अकीदे की तो बात वहीं से खत्म हो गई ना हजरत। अब आप ही की तरफ अगर निकालने पे आ जाए तो 1000 चीजें निकल आएंगी। तो मैं उसमें वो आपको कोई समझा ही नहीं सकता क्योंकि आप समझना नहीं चाहते। तो अब ये तो आप अभी तो आप दूसरों की तरफ कह रहे हैं ना कि ऐसा है वैसा है। अभी आपकी तरफ आ जाएगा, दुनिया भर के निकाल दूंगा, उस किताब में ऐसा लिखा, उस किताब में लिखा है, तब आप कहाँ जाएंगे कि असलम अली थानवी जी ने ऐसा लिखा हुआ है, फिर आप कहाँ जाएंगे? आज बात हुई आपकी। एक मुरीद ने उनको खत लिखा और खत में कहा कि हजरत मैंने देखा है कि मैंने पढ़ा करमा ला इलाहा इल्लल्लाह, अशरफ अली थानवी वो बात उधर मत रसूलुल्लाह। जाइए, अभी ये जो नहीं बातें नहीं, हो क्यों ना रही जाए, है। सुन लीजिए ना मेरी बात। अभी नहीं, मेरी बात तो सुन वो लीजिए बात नहीं, हजरत। बीच में अभी तो आप फिर टॉपिक चेंज कर मैं देते इसमें हैं। निकालूंगा गुस्ताखी रसूल। नहीं, नहीं, जब आप आप किसी पहले पे मेरी बात इसी को कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा मेरी बात सुनिए, मैं आपकी बात का, मैं ऐसा ना, मैं तो किसी मीटिंग में आ रखा हूँ, इतना टाइम नहीं मेरे पास नहीं, कि आप मैं जो आपसे लेकर अभी सुबह बात से शाम। कहे 1-2 मैं मिनट आपकी और ये बात का बात आप सुनिए। आपने कहा इस कि बात की अब आपने गवाही देते देवबंदी हैं, सही उलमा बात से है। पूछा, नहीं आपने देवबंदी उलमा से पूछा। आप टॉपिक चेंज पहले करके लंबी बात ना मैं करें। हाँ मैं देवबंदी उलमा से करूंगा आपने मैं पूछा, उसकी बात कंप्लीट करते हैं। भाई उलेमा आपने से, मैं अपने देवबंदी हाफिज उलमा जिनके से पीछे नमाज पूछा, पढ़ता हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। नहीं आप देवबंदी मैंने उलमा से सबका पूछा, ठेका तो उस नहीं ले बात रखा। को कंप्लीट करते हैं। सुनिए जरा। देवबंदी उलमा से आपने पूछा है कि ये किताबों में ऐसे ऐसे लिखे अरे हैं, तो भाई आप देवबंदी उलमा इसको ने सुनिए कहा। ना, 5 बार बोलने से हजरत कुछ थोड़ी ना हो जाएगा। मैंने कब कहा दो उलेमा से पूछा? मैं हाफिज आपने जिनके कहा ना पीछे कि नमाज उन्होंने पढ़ता हूँ, कहा उनकी कि बात कर ऐसी रहा हूँ। किताबों में उनके नाम से किसी ने जोड़ दिया है, उनके नाम से गढ़ा है। वही बात मैं बोल रहा हूँ, अभी अरे क्लियरिटी के साथ आपको भाई समझा देता हूँ। मेरा सुन लीजिए तरीका ना, यही है कि आपकी बात को मैं अच्छी तरह मैं याद रखता हूँ, उसको आपको दोहरा के सुनाता हूँ, फिर मैं उसका नहीं आप जवाब गलत देता हूँ, बोलते हैं, ताकि आप आप गलत ना बोल रहे बोले हैं। कि मैंने मैंने उलेमा झूठ नहीं नहीं। कहा, मैंने ये कहा कि जहाँ मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैंने आपको हम्म। एड्रेस भी बताया देहरादून। मैंने उलेमाओं की गारंटी नहीं दी। आप इसको किसी उलेमा मत से भी जोड़ो उसके पूछा, आगे। मैंने उन्होंने आपको कहा, उस हाँ बात तो को आपने मान हाँ लिया। उसको आपने मान लिया कि मान अल्लाह लिया झूठ बोल भाई, सकता है, मैं उसके ऐसी पीछे किताबों नमाज, में नहीं है, ऐसी किताबों में नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमारे आप नाम पूछोगे से। तो आपको यही कहेंगे जो चुप मैंने तो हो बताया आपको। जाए। क्यों इस तरह आप अदब के दायरे में बात कर रहे थे, बहुत मोहब्बत से बात हो रही थी, आप बहुत जल्दबाजी कर रहे मैं हैं। तो सुनिए ना, हजरत, ये ना रिकॉर्डिंग दोबारा आप सुनना इमोशनल हो जा और रहे फिर हैं। आप इमोशनल ये हो जा देखना रहा है, इमोशनल खामोशी कौन हो से रहा है। मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। आपको मैं गलत फहमी, जब इस तरह बात करेंगे तो गलत फहमी दूर नहीं होगी। मैं कहना चाहता नहीं हूँ नहीं, कि देखो मुझे कोई आपने गलत जिससे भी फहमी नहीं है, पूछा, अल्हम्दुलिल्लाह उसने कितना झूठ जी। बोला, वो झूठ का सबूत देता हूँ। किताब का नाम है बराहीन कातिया। 140 साल पहले किताब छपी है। ठीक हो गई, ठीक हो 140 गई। साल पहले उस वक्त गंगोही, नानोतुबी, देवबंद के जो सबसे बड़े बड़े उलमा सब जिंदा थे। सबके मौजूदगी में किताब को छापे गए। उस किताब के अंदर जो बातें हैं, उस बात का हमारे उलमा ने जवाब दिया। हमारे उलमा ने गलत मैं ठहराया, एक उस छोटी सी बात गलती पर पूछूं आपसे उन्होंने वापस उस किताब की जस्टिफाई किया। जी। उस आप किताब सुन की लीजिए, अभी जस्टिफाई छोटी सी किया। बात पूछूं आपसे, छोटी सी बात पूछूं आपसे। पूछिए। ये जो छोटी सी बात, जो इस्माइल देहलवी जो है, ठीक है, इन्होंने जो किताब में अपनी जो भी गलती लिखी है, गुस्ताखे रसूली की है या अल्लाह के खिलाफ कोई बात लिखी है, ये कौन से सन में लिखी थी इन्होंने तकरीबन 1830 से आगे के पहले लिखे हैं। हाँ नहीं, इसकी 1830 पूरी से भी तहकीक करके पहले। बताओ आप, ऐसे ऐसे नहीं है हवा में ना, बताओ मुझे। अगर आपके पास नहीं है तो सर्च करके आप मुझे बताओ, फिर इस पे बात नहीं करेंगे। वो बात, उसकी बात तो हो गई, वो उसकी नहीं बात हुई बहुत नहीं ना। पुरानी हो गई। उसके बाद का हमारे उलमा ने जब मुनाजरा करके उसको शिकस्त दी, उसकी बोलती बंद की, वो गुमनाम हो गया। बाद में जिन्होंने दोबारा उस बात को आगे बढ़ाया, वो बड़े जिम्मेदार हैं। उन्हीं की वजह से तफरीका फैली। तो भाई इस्माइल देहलवी से तफरीका नहीं फैली थी। वो जाने इस्माइल अल्लाह क्या, देहलवी मैंने सबसे स्टार्ट की। इस्माइल देहलवी की तरफ एक भी आवाम नहीं थे।
उलमाए देवबंद ने अरे शरारत भाई मेरी करके बात तो सुन अंग्रेजों की लीजिए, वफादारी में मैं किताबें हजरत दोबारा इतनी शाया बात किया। करने का रीजन ही क्या है, इतनी बात करने का फायदा ही क्या है, जब मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि वो अल्लाह के पास है, वो बेहतर अल्लाह फैसला के पास करने वो तो वाला वो है, आप तो क्यों मैं और आप अपने क्यों जहन्नम फैसला कर रहे उनकी हैं इसके? तारीफ करके उनकी गलती हाँ, हमको कोई सिर्फ गलती को मैं दिखाना है, बिल्कुल ताकि भाई आप देखो, गलत जिसे आदमी मैंने को देखो। जिसे मैंने इंसाफ का तकाजा शुरू में मैंने हम्म, कहा कि अल्लाह ताला ने आपको हम्म। आदिल बनाया, जज बनाया। आपका काम है गलत को गलत कहना, सही को तो सही कहना। अब जब आप इसे गलत आदमी को जब आपने आप इतने सारे सवाल रहमतुल्लाहि अलैह मुझसे कर कहेंगे, लिए, आप अरे एक साथ ना हजरत मेरी बोले, बात तो बोल लीजिए, सुनिए, आप पहले 2-3 मिनट बोल मैं तो लीजिए, शिया चलिए। के उलेमाओं को भी रहमतुल्लाह अलैह कह देता हूँ, क्योंकि नियत पे फैसले है ना भाई। आप नियत पे जो आप मेरी फैसला बात तो कह समझ रहे रहे हैं, हैं, मैं तो शिया के वालों को उलेमाओं को भी रहमतुल्लाह अलैह कहता हूँ, मेरे को तो किसको भी रहमतुल्लाह अलैह कहूंगा, क्योंकि मुझसे ज्यादा इल्म रखने वाले हैं, तो मैं तो उनको कहूंगा। तो आगे मेरी बात आपको इल्म की समझ में, बुनियाद पे अगर मैं किसको रहमतुल्लाहि अलैह सर्टिफिकेट, आप कहते हैं, देखो देखो तो देखो समझो, आप हजरत सर्टिफिकेट इब्लीस मांगने को वाले, मैं रहमतुल्लाहि अलैह कह सर्टिफिकेट दीजिए। मैं क्यों कहूंगा भाई? तो फिर आलिम होने की मैं वजह क्यों, से रहमतुल्लाहि अलैह कह रहे हैं आप। नहीं उसको कुरान उसको जो है ना, इंग्लिश का जो दिफा उसके बारे में तो कुरान में आ गया ना, वो क्या है, अच्छा, जो लेकिन इन कुरान सब में के बारे नहीं में कुरान आए, में आया चाहे नहीं। गलत साबित भी हाँ, हो, फिर भी आप रहमतुल्लाहि अलैह नहीं मैं एक, कहेंगे। एक, एक, एक बात कह रहा हूँ, मैं अब मेरी बात को सुन लीजिए, यानी आप जो जैसे कुरान आपने नाजिल कहा होने से कि पहले गलत थे, वही लोगों को गलत कहेंगे। आज के दौर का नहीं जो नहीं ऐसा नहीं फिरौन है, है, आज के दौर का जो आप बात इब्लीस है, देखो ये ना, उनको आप आप तो वही गलत वाला नहीं हिसाब है कहेंगे। कि पहले चाय पत्ती का देंगे, पहले आप एग्जाम्पल, फिर बिस्किट पे ले आएंगे, फिर कहेंगे वल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे तो ये तीन ही चाय। आप मेरी बात को समझ रहे हो, वो ऐसे मत ना घुमाओ मुझे, मेरे से दो शब्दों को बात है कि जो उन्होंने किया वो बेहतर वो जानते हैं, और अल्लाह जो है उनके नजदीक है। अब उन्होंने जो करा होगा, जो घड़ा होगा, तो वो जानेंगे ना भाई, मैं क्यों उसका जिम्मेदार थोड़ी ना हूँ। जिम्मेदार जरूर है, जब आप उसका सपोर्ट मैं तो करोगे। जिम्मेदार उनका, आपके घर मैं कोई में, सपोर्ट नहीं कर रहा, सुनिए, मुझे तो तहकीक ही नहीं है कि सही है गलत है, मैं तुम्हारे कहने तहकीक में थोड़ी ना आप मान लूंगा। देखिए, बिना तहकीक किसी को सपोर्ट करना, आप किसी मुझे को बताएं, इमाम बनाना। अरे मैं आपकी बात का जवाब पूछ रहा हूँ ना, आप ही का सवाल पूछ लेता हूँ मैं, जो जो अहमद रजा खान है बरेलवी वाले, जिनकी आप बात कर रहे थे, उन्होंने, आपको पता है बात जो मैंने आपसे बोली थी अभी, क्या बोले कि थे? उनके एक मुरीद ने खत लिखा, खत का जवाब भी उसमें अवेलेबल है, कि हजरत मैंने देखा कि मैंने कलमा पढ़ा और मैंने दुरूद शरीफ पढ़ी, और मैंने उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के जगह आपका नाम देखा, और अल्लाह के नाम की जगह आपका नाम देखा। तो उन्होंने प्रॉपर इसमें लिखकर रिप्लाई किया गया है कि बरहक तुम्हारा जो शेख यानी कि तुम्हारा जो पीर है वो बिल्कुल हक पे है, उसकी उन्होंने ये ताबील बता दी। आप इस बात को गवाही देते हो? अभी अब ये बात सही है, बिल्कुल लिखी हुई है, ये गुस्ताखी रसूल, गुस्ताखी अल्लाह के खिलाफ गुस्ताखी नहीं हुई, गुस्ताखी हुई? दूसरों को तो ये आप बात क्रिटिसाइज, किसके बारे में बोल रहे हैं आप? अहमद रजा बरेलवी के बारे में बता रहा हूँ भाई, रहमतुल्लाह अलैहि, आपने उन्होंने शुरू लिखी में है। यही बात आपने शुरू में कहा था अशरफ अली थानवी के बारे में, आप बोल रहे हैं अहमद रजा बरेलवी के बारे में। अहमद रजा बरेलवी की बात कर रहा हूँ भाई मैं। तो अहमद रजा बरेलवी रहमतुल्लाहि अलैह ने ये बात को किस किताब में हाँ, लिखी है, आपने पढ़ा है? मैं किताब का रेफरेंस दे देता हूँ, तहकीक आप करो। तहकीक वो हमने तहकीक, हमारे पास किताब मौजूद है, अशरफ अली थानवी के बारे में है। आप हाँ आला हाँ, हजरत के बारे में पेश कर रहे हैं, और गुस्ताख आपने खुद माना अशरफ अली थानवी गुस्ताख है। और उस गुस्ताख को मैं इस इबारत की बुनियाद पे कलमा पढ़ने वाला, दुरूद पढ़ने वाला अशरफ अली थानवी के नाम पर, तो वो गुस्ताख आपके हिसाब से ठहरे। और गुस्ताख को आज के उलमा जो जस्टिफाई कर बस रहा है, गुस्ताख को जस्टिफाई करने बस वाला भी देखो अब, गुस्ताख है। और गुस्ताख के पीछे अगर जानबूझ के नमाज पढ़ रहे हैं, ठीक है, देखिए, अरे आप अगर हजरत आप फिर जानबूझ घूम के, फिर के मुझे ये एक बताइए, लास्ट अगर अगर कोई ऐसी बात लास्ट आपको कहेगा एक जैसे मैंने एक बताया अभी, एग्जांपल देता हूँ, लास्ट नहीं नहीं एग्जांपल सुन तो लो देता मेरी हूँ। बात, अजी मेरी बात तो सुन देखिए, लो पहले, इसकी मेरी बात। लास्ट एग्जांपल देता हूँ आपको, 1 मिनट। दोनों एक साथ हम्म, बोलना मुनासिब नहीं। आप इमोशनल हुए तभी आप चुप रहे। मैं भी इमोशनल होता हूँ, लेकिन चुप रहता हूँ आपकी बारी में, आपको सुनता हूँ पूरा। बात यह है मैं कि इमोशनल नहीं हो रहा हूँ, मैं आपकी आपने बात का जवाब दे रहा हूँ, दोबारा सुनना इसको, रिकॉर्डिंग को आप। आपने जानबूझ के जहर खाया आपने, तो आप हो गए हराम मौत मरे, जहन्नमी। लेकिन वही जहर अगर आपने बिना, आपको मालूम नहीं था, किसी ने आपको दिया, आप पिए, तो शहीद। अगर वही मर गए बगैर मालूमात के, जहर पी के मर गया, तो वो शहीद होता है। और मालूम होके अगर जहर पिया, मरा, तो वो भाई हो मैं गया आपकी जहन्नमी। एक मेरी बात तो तो सुनो, ऐसा ही आपने मुझसे उलमाए 56 देवबंद मिनट के बात बारे की। में आपको अरे मालूम हजरत नहीं मेरी बात था, सुनो, आपने नमाज पढ़ी, तो आपकी नमाज हो गई। लेकिन जब मालूम पड़ा कि इनके अकीदा गुस्ताखी है, फिर वो गुस्ताख उलमा की जस्टिफाई करता है, गुस्ताख उलमा को अब रहमतुल्लाह अलैह कहता है, तो वो हजरत मेरी बात तो सुन रहे हैं आप? अरे हजरत सुनो सुनो, नॉन स्टॉप 56 मिनट में आप ये देखना। अब आपको मैं एक बहुत बढ़िया बात बताता हूँ, आप मुझे कह रहे हैं मैं इमोशनल हो गया हूँ, मैं ये हो गया हूँ। आपकी 56-57 मिनट की कन्वर्सेशन में रिकॉर्डिंग की होगी आपने, इसको सुनना और उसमें देखना मैंने कितना बोला और आपने कितना बोला, ठीक है?
और कौन इमोशनल हो रहा था ये पता लग जाएगा आपको। अब आप मेरी बात सुन रहे हैं, ये इतनी सारी बात जो 1 घंटे से आप मुझे समझा रहे हैं, आप समझा क्यों रहे हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है। अच्छा, सबसे इसलिए समझा रहा हूँ कि अल्लाह कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। तो आप सच्चे, एक जमात है सच्चे और एक जमात है झूठे। सच्चा कौन है, झूठा कौन है, झूठी जमात आपने बता दी। सबूत दे रहा हूँ। एक जमात जो कह रहा है, सुन तो लो हजरत, अरे सुन तो लीजिए मेरी बात। आपने अपनी बात खत्म कर दी, दूसरी सुन लीजिए। आपकी बात समझ गया मैं। अब मैंने सवाल किया, आपने जवाब दे दिया कि सच्चों के साथ हो जाओ। ये तो आपने बताया झूठे हैं, अब सच्चा कौन है? वही तो मैं बताने जा रहा है। एक जमात कह रहा है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। उस जमात के बड़े उलमा लिखे हैं कि नबी का इल्म कम है, शैतान का इल्म ज्यादा है। एक एक बात उनका आप खुद कह रहे हैं कि वो झूठे हैं। तो उस झूठे की जमात से आपको तौबा करना है, उनका साथ नहीं देना है, उनके पीछे नमाज पढ़ना भी उनका साथ देना है, उनके मदरसा में चंदा देना भी उनका साथ देना है, उनके मदरसे में बच्चों को पढ़ाना भी उनका साथ देना है, उनका बयान सुनना भी उनका साथ देना है। वो तो ठीक है हजरत, अब इस पे आ जाओ, अपने पे आ जाओ। अल्लाह कुरान में फरमाता है कुनू मअस्सादिकीन। अब आप बताओ। जी, ये हम सच्चे हैं। कहाँ चंदे में हमारा अकीदा है अल्लाह झूठ नहीं बोल सकता, हम सच्चे हैं। बिल्कुल अच्छी बात वो है। झूठे हैं तो झूठों के साथ मत जाओ। अल्लाह फरमाता है आप जो है गलत फहमी से उनका साथ दे रहे हैं। कौन से मैनेजमेंट से हो उनका, आपका भी तो नाम होगा ना, जैसे आपने उनको देवबंदी बताया, आप कौन से उससे हो? हम जो पहले थे वही है, हम अहले सुन्नत है। अहले सुन्नत से कट के उन्होंने अलग अकीदा गढ़ा, अलग जमात बना लिया। सुनो तो, अब अहले सुन्नत में और जमात में 2 अकीदे हैं, एक देवबंदी है और दूसरे बरेलवी है। अहले सुन्नत नहीं रहा ना, पहले जब अहले सुन्नत थे सबका अकीदा अहले सुन्नत वाला था। उन्होंने कहा कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, तो ये कहते ही अहले सुन्नत से कट गया, वो हो गया अलग, ठीक हो गया। हम अहले सुन्नत में ही रहे, हमने कोई ऐसी बात नहीं कही। अगर हमने कोई ऐसी बात कही है तो बताओ, फिर हम भी अहले सुन्नत में नहीं रहेंगे। अरे हजरत मेरी बात तो सुन लो, आप दूसरे वाले हो गए ना, यानी कि आप अहले सुन्नत वल जमात बरेली वाले हो गए, यही कह रहे हैं ना? एक ही रह गए क्यों अहले हदीस। सुनो, अब आपको सुनो, मैं 1 मिनट और बोलता हूँ, 1 मिनट और बोलता हूँ। मैं 1 मिनट बोलना चाहता हूँ, प्लीज 1 मिनट बोलना चाहता हूँ। तीनों अहले सुन्नत थे, अहले हदीस भी अहले सुन्नत में थे और देवबंदी भी अहले सुन्नत में थे। वो सब पता है मुझे, आप मुझे मत बताइए, मुझे मालूम है। मालूम है तो आप मुझे मेरा सुनिए ना, सब नकली सुनिए ना, सब नकली। सिर्फ आधी बात मालूम होने से आपको मालूम नहीं कहलाया जाएगा। आपकी पूरी बात, मेरी पूरी बात सुननी पड़ेगी। मैं क्या कहना चाह रहा था, आप आधी बात सुन के फौरन मुझे काट देते हो। मैं बोल रहा हूँ कि तीनों अहले सुन्नत थे, तीनों में से 2 निकल गए, 1 बचे हैं। 2 कैसे निकल गए? उन्होंने नबी की गुस्ताखी की, वो निकल गए। अहले हदीस भी गुस्ताखी की और कुरान हदीस के खिलाफ उन्होंने नया दीन गढ़ा, अंग्रेजों से रजिस्टर करवाया, अलग जमात बनाकर अलग पहचान बनाई, वो भी निकल गए। सिर्फ अहले सुन्नत बरेली भी बचे, बाकी दोनों अहले सुन्नत से खारिज हो गए। हाँ, आप बताइए, बोलिए। फोन काट के चले गए, लगता है फोन काट के भाग गए। जी वो सुन रहा था, क्या कह रहे थे? तो देख रहा था। जी जी जी, आप फोन काट के चले गए, लगता है, ऐसा लगा मुझे। अरे भाई फोन पे मैं कहीं काट के नहीं गया, मैं फोन पे ही हूँ, मैं क्यों काट के जाऊंगा? आप बताइए, अहले सुन्नत में से जब वो निकल गए, सिर्फ 1 बचे अहले सुन्नत। हाँ, अब बचे, मैं समझ गया आपकी बात। अब आपकी बात समझ गया, मेरी बात सुनेंगे आपको। अब आपका कहना यह है कि आप बिल्कुल हक पे हैं। जी बेशक, 100%। अब आपको मैं अब मैं बात कहूँ, मेरा ऐसा मानना है जो मैंने कुरान और हदीस से सुना है और जो समझा है जी, और इसके मैं आपको रेफरेंसेस अभी तो बिल्कुल नहीं कहूंगा क्योंकि मैं किस मीटिंग के लिए आया हूँ और उसे छोड़ के तो मैं ये नहीं बता सकता आपको, लेकिन कॉन्टेक्ट नंबर आ गया, मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ, क्लिप शेयर कर दूंगा कि जो ये मजारात का अकीदा आपका है, जो मजारात पे ये जो ढोल तमाशे ये जो सब होते हैं, ये जो होते आ रहे हैं, एक ख्वाजा गरीब चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की वहां पर भी चौखट पे भी ये सब हो रहे हैं, ये जो आप देखते हो और उनके नाम पे जो पैसा खाया जा रहा है, ये सब जो है आपका अकीदा बिल्कुल ठीक है, इसको कैसे मान लूं मैं बात को? अच्छा, ये दूसरी बात जो खा रहा है, हाँ, ये और इसके बारे में अब आप तो सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, अब ये मेरी बात अब हो गई ना शुरू, आप पहले दूसरी बात सुनिए जैसे मैंने आपकी सुनी। अब दूसरी बात ये हो गई
کہ جب یہ بات تو ایک تو یہ بتائی میں نے آپ کو جو مزارات کی چندات وغیرہ ہو رہا ہے اور یہ جو مزارات کا بزنس ہو رہا ہے، ایک تو یہ ہو گیا. اب دوسری بات یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ نے دوسرے علماء کے بارے میں بتایا کہ ان کے خلاف بھی گستاخی انہوں نے کہی، ایسے ہی یہ والے علماء اس طرف کے بھی جو ٹیم بی ہے، اب ٹیم اے ہے یا بی ہے، یہ آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ کے جو بزرگ ہیں یعنی کہ وہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کو رحمۃ اللہ علیہ کو کہ بھائی یہ ایسا ایسا جو ہے انہوں نے بھی گستاخی اپنی کتابوں میں کی ہے. اس کا ریفرنس میں آپ کو دے دوں گا واٹس ایپ پہ. تو اگر وہاں نکلے گی گستاخی پھر آپ کیا کریں گے؟ جیسے بہت چھوٹی سی بات ہے ان کی کتاب میں انہوں نے چشتی رسول اللہ کہا ہے. ہم نے دیا اسی کا جواب ہم نے شروع میں ہی دیا آپ کو، آپ نے سنا نہیں، کیونکہ میں بھی بولتے رہتا ہوں، آپ بیچ میں ایموشنل ہو کے بولنا شروع کرتے ہیں، میرا پورا سنتے نہیں. میں نے یہ کہا تھا کہ جن لوگوں نے اللہ رسول کے بارے میں جھوٹ بولا وہ تو اہل سنت سے نکل گئے. اگر ہم بھی اگر اللہ و رسول کے بارے میں اگر ہماری کتاب میں بھی ایسی کوئی باتیں دکھا دے، ہم بھی جھوٹے ہو جائیں گے. ہمارا آج تک کوئی دکھا نہیں پایا، اس لیے ہم سچے، ہم کہہ رہے ہیں، ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم سچے ہیں. اگر آپ کو اگر کوئی بھی ایسی ثبوت ہو، ضرور 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 آپ کا نمبر. اگر کسی نے سنیے تو میری بات حضرت، اگر کسی نے گالی دی تو دوسرا ضرور تمہیں گالی دے گا، دوسرا کچھ اور کرے گا، وہ تو ہاتھ پر توڑے گا. تو ہر آدمی کی مختلف مزاج سے الگ الگ حرکتیں ہوتی ہیں. تو ضرور بالکل میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. جیسے ابھی یہ پکی مزاریں بنی ہوئی ہے جس پہ بزنس چل رہا ہے، اس پہ میں اگزامپل دیتا ہوں آپ کو. وہاں ایک گلک رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہاں ایک گلک رکھی ہے اور اس میں جا کے میں نے 100 روپے کا نوٹ ڈالا. ٹھیک ہو گیا، 100 روپے کا نوٹ میں نے ڈالا. ایک غیر مسلم آیا، اس نے بھی 500 روپے کا نوٹ ڈالا. اسی سے کھانا بن گیا. وہی کھانا ان بزرگوں کے نام پہ کھلایا جا رہا ہے اور وہ حلال ہو گیا. کیسے ہو گیا بتائیے آپ؟ غیر کا پیسہ تو مسجد میں بھی نہیں لیتے. اس لنگر کو کھا کے آپ نے کیسے حلال کر لیا؟ آپ اس کی ایک بار مجھے چھوٹی سی دلیل دے دیں. یہ جو باتیں ہیں نا، سب سے پہلی غلطیاں، سب سے پہلے اسی کا جواب دیجیے آپ. سب سے پہلے اسی کا جواب دیجیے آپ مجھے. بس یہ ٹاپک جو دوسری طرف جا رہا ہے، سنیے نا، نہیں چھوڑ دیجیے اس بات کو، سارا ایموشنل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس کا جواب دیجیے نا جو میں نے آپ سے سوال کیا حضرت. پہلی بات، آپ ایک ان پڑھ آدمی ہے، آپ کھڑے ہو کے پیشاب کر رہے ہیں. سنیے، آپ کھڑے ہو کے پیشاب کر رہے ہیں، میں مولانا مفتی ہوں، میں کھڑے ہو کے پیشاب کر رہا ہوں. ایک فار ایگزامپل، غلطیاں عوام جو دیکھیں گے کس کی غلطیاں زیادہ مانیں گے؟ حالانکہ غلطی تو دونوں کی ہے. کیا غلطی کس کی ہے زیادہ مانیں گے عوام؟ ابھی تو آپ نے کہا علم کی بنیاد پہ تو غلطی بتائی جائے گی، لیکن دونوں میں سے غلطی کس کی زیادہ ہوگی؟ دونوں کی غلطی ہوگی. زیادہ سے مطلب نہیں ہوتا، زیادہ مطلب ہوتا ہے زیادہ پکڑ اس کی ہوگی. ایک تو ان پڑھ آدمی، سنیے، آپ ایک ان پڑھ آدمی یا سمجھو نالج زیادہ ہوگی، آپ پارک میں لڑکی کے ساتھ بیٹھ کے آپ ٹائم پاس کر رہے ہیں، اور ایک عالم مفتی بھی پارک میں لڑکی کے ساتھ ٹائم پاس کر رہا ہے، تو عوام کس کو زیادہ خراب سمجھیں گے؟ میں نے آپ کو کہا جس کو زیادہ نالج ہوگی. آپ میری بات ہی نہیں سن رہے، بولے جا رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں جس کو زیادہ نالج ہوگی. ہاں، تو یہی بات ہے، آپ جو غلطیاں بتا رہے ہیں، آپ عوام کی غلطیاں بتا رہے ہیں، اور ہم جو غلطیاں اتنی دیر بتائے، نہیں میں آپ کی بات چیلنج ہے میرا آپ کو. سنیے میری بات، ارے حضرت سنیے، چیلنج ہے میرا آپ کو. اب عوام کی بات نہیں کر رہا میں، وہاں کے جو بھی تو آپ کے جو بھی ہیں، آپ کی لائن کے جو لوگ ہیں وہاں پر بڑے بڑے مست وہ سب کر رہے ہیں. میں آپ کو بالکل لائیو دکھا سکتا ہوں. آپ لائیو دکھائیے، میں بھی لائیو دکھاؤں گا. یہ جو آپ کلیئر شریف، آپ کے وہاں سے نزدیک کلیئر شریف ہے نا، کلیئر شریف میں ہے نا، کلیئر شریف وہاں تو لوٹ ہو رہی ہے، لوٹ ہو رہی ہے، بے شک لوٹ ہو رہی ہے. آپ یہ بتائیے، ڈالو پیسے اس میں ایسے آپ دیتے ایک منٹ ایک سیکنڈ بولیں گے تو ایسا سمجھ میں نہیں آئے گا. آپ پہلے 2 منٹ بول لیجئے، ورنہ مجھے 2 منٹ بولنے دیں. گھمایا نا بات کو، اس لیے مجھے بولنا پڑ رہا ہے. بولنا نہیں، ایسا نہیں بولنا، ایسا بولنا ریکارڈ ہو رہا ہے. جب آپ پورا بولنے نہیں دیں گے تو ریکارڈ کرنے سے کیا فائدہ ہے پھر؟ ہاں، ریکارڈ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. آپ اطمینان سے ذرا سنیں میری بات. آپ جو غلطیاں بتا رہے ہیں وہ عام انسان کی غلطی بتا رہے ہیں، اور جو کلیئر شریف ہے، ہاں بولیے، کلیئر شریف میں وہاں پورے علاقے میں گھومیے، ایک بھی جو غلطی کرنے والا آپ، میں چیلنج سے کہتا ہوں، کوئی عالم نہیں دکھا پائیں گے. اور ایک غلطی جو پوری بات سنیے نا، اب میری کمپلیٹ نہیں ہوئی. پوری ایک غلطیاں وہ عوام کر رہے ہیں، وہ حرام تک، کفر شرک نہیں. اور جو آپ کی علماء کی میں نے دکھایا، یہ کفر کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اسلام سے خارج ہوتا ہے. ادھر مت جائیے، ابھی آ جائیے اس پہ. دونوں غلطی ایک موازنہ، جب آپ دونوں برابری غلطی بتا رہے ہیں.
आप इसी पे आपकी रहिए। बात पूरी बात सुनिए। बात यह है कि जब एक आप गलती की वजह इसको से डिफाइन कर रहे हैं, इस्लाम इसको से डिफाइन खारिज कीजिए। होता है, उस गलती की आप जस्टिफाई कर रहे हैं, और दूसरी नहीं, मैं कुछ गलती की जस्टिफाई वजह नहीं से कर वो रहा। हरामकारी होता है। ना 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 ना, अब शराब पीने वाला अरे काफिर सुन है तो क्या? लीजिए। काफिर अब है या मेरी बात गुनहगार है सुनिए, शराब पीने वाला? अब आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ मुझे मैं, जैसे आपने जवाब मुझे दीजिए, घुमा के इतना वहां ले जा जवाब रहे हैं। दीजिए, शराब पीने वाला काफिर है या गुनहगार है? भाई शराब पीने वाला काफिर भी हो सकता है, गुनहगार भी हो सकता है। अगर वो हो मुसलमान दारू सकता पिएगा नहीं। तो आप सुन तो देखिए, लीजिए शमीम हजरत। नाम का आदमी शराब पी रहा है, तो वो काफिर है अब आई ना, या अब आया ना गुनहगार पॉइंट। है? तो फर्क है ना, जब आपका सवाल ही गलत, आपने ये पूछा कि मैं शराब पीने बोला वाला हूँ, काफिर है या कोई गुनहगार है, गंगाराम की तो बात नहीं अगर कर रहा हूँ, मैं शमीम के हाँ नाम अब की है ना बात बात कर पे, रहा हूँ। गंगाराम तो काफिर है, हाँ तो गुनहगार है, गुनहगार गुनहगार है, है। तो शराब पीना हाँ गुनहगार है, लेकिन अल्लाह रसूल के बारे में गलत बोलने वाला काफिर है। और अजी सुन पहले तो लीजिए, अब अजान हो आपने रहा है, बोल अजान दिया, सुनिए, मेरी पहले बात तो अजान, सुन लीजिए। अजान के बाद और 5 मिनट बात करेंगे। ये जी, सिस्टम से बात करेंगे ना तो कम वक्त में बात हो जाती है। अब आधी बात में फौरन टोकते हैं तो बात मुकम्मल नहीं होती, फिर लंबी हो जाती है। और हजरत आप मैंने अपनी 3 मिनट में, आपको कहा, अब मैं बोल रहा हूँ मैंने आपको कहा है, 3 मिनट में अपनी बात रखिए आप, फिर मैं उसका ठीक हो जवाब गया, दूंगा आपको 3 जवाब मिनट दूं में। आपकी बात का। इसको पूरा सुनिएगा, अपनी कन्वर्सेशन को और मेरी हाँ, मैं कन्वर्सेशन को सुन सुन रहा लीजिएगा, हूँ, सुन सुनाइए। लीजिएगा, सुन लीजिएगा उसमें कि कौन बात काट रहा है नहीं काट रहा है। जब अननेसेसरी आप किसी चीज को खींचे जाओगे, बेवजह एक बात को 10 बार बोलोगे, तो इतना इतना टाइम तो मेरे पास नहीं है, एक ही बारी में समझ जाता हूँ मैं, है ना। अब आप मेरी बात को, मैं आप कह रहे थे ना कि एक गलती अलग है, दूसरी गलती अलग है। मैं आपको ये कह रहा था कि मैंने आपको एक सिर्फ एग्जाम्पल दिया है, और दूसरी बात यह है कि वहां पर जो करता धरता करने झरने वाले, वो सारे यही करते हैं जो मैंने आपको बताया, और मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा सकता हूँ, उसको रिकॉर्ड रखिएगा मेरी बात को। दूसरी बात बताता हूँ आपको, एक भी उलेमा वहां पर आके, जो मैंने अपनी नजर में आज तक कभी किसी ने आके वहां कहा हो कि जो हो रहा है गलत हो रहा है, ये खिलाफ सुन्नत है, मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। और अगर आपने देखा तो आप मुझे बता देना, आप मुझे रिकॉर्डिंग भेज देना कि देखो जी ये कह रहे हैं, मैंने रिकॉर्ड करी हुई है। तीसरी बात, ये जो आपका जो तरीका है, सबसे इम्पोर्टेंट, आपने कहा ना अल्लाह के अलावा जो किसी और से मदद मांगता है, अब उसमें बात आ जाएगी, फिर वो बहुत लंबा डिस्कशन चलेगा। ठीक है, मैं आपको कुछ हदीसें पेश कर दूंगा, पहले मैं कर दूंगा, फिर आप उनको डिसाइड करके मुझे बताना कि उनका मतलब क्या है जी। फिर हम इस पे बात करें, फिर हम उस पे बात करेंगे, वो गुस्ताखी रसूल हुए, खुदा के अलावा सिद्ध करने वाले हुए, अकीदा कहाँ गया, तो फिर हम बात करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, अभी तो आपका नंबर मैं ले लेता हूँ। ये जो फोन किया आपको, हाँ, आप मुझे इनका मैसेज नाम कीजिएगा। है तौसीफ भाई। तौसीफ भाई से मैं आपका देखा नंबर मैंने, ले लूंगा, मेरा नंबर लेके आप मुझे लिख हाँ, दीजिए, और आपको मैं मैं आपको भेज ये जो दूंगा। वो आप एक बात सुनिए, हाँ एक बात सुनिए, हाँ जो दरगाह में जो है वहाँ, कोई भी वहाँ दरगाह के गद्दी नशीन से लेकर चापरासी तक, वहाँ के झाड़ू देने वाले तक, पूरे दरगाह में सिर्फ एक इमाम आलिम है वहाँ का। कलियर शरीफ की बात कर रहा हूँ। इमाम साहब आलिम है, मुफ्ती है, मौलाना है। इमाम साहब जो गलती कर रहे हैं, सुनिए पूरी बात मेरी सुनिए, कलियर शरीफ में हो या अजमेर शरीफ में हो, वहाँ के जो मस्जिद का इमाम है वो आलिम है। अब आलिम क्या है, कमेटी वालों के ताबे है। कमेटी वाले बोले बयान में ये मत बोलो, तो वो बोलना पड़ता, वरना बोले जाओ ये यहाँ से, कैसी दूसरा बातें कर इमाम रहे रख हैं लेंगे। आप हजरत। आप सुनिए, बात सुनिए, हमारे उलमा जो वहाँ का इमाम नहीं है, वहाँ का तो छोड़ इमाम देनी भी, जगह ऐसी जगह इमामत, हाँ, छोड़ देनी चाहिए ऐसी जगह इमामत भाई, क्यों छोड़ कर दें। रहे हैं अब इमामत को ऐसी देखिए, जगह। मैं एक मस्जिद में इमाम हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ अभी, और लंबी बात नहीं, इसी टॉपिक को कंप्लीट करके फोन काट देता हूँ। फिर आपको मैं दूसरे टॉपिक, जो कब्र से मांगना चाहिए नहीं मांगना चाहिए, या कब्र में क्या क्या हो रहा है, वहाँ के गोलक में पैसा किस किस का हलाल है किसका हराम है, इस टॉपिक पे आगे बात करेंगे। अभी यहाँ इमाम और वहाँ के कौन आलिम है और आलिम का क्या किरदार है, सबको, हाँ इसी बात कंप्लीट करता हूँ। जी आपने जी कहा कि कोई आलिम रोक नहीं रहे, हमारे हर आलिम, हमारे बयान भी कम से कम 100-150 बयान मेरा यूट्यूब पर था, अभी भी 10-15 आप छोड़ बयान दिए मेरा अपनी यूट्यूब बात। पे है। सुनिए, ये तो अभी शुरू हुआ जी, पिछले साल से ही, सुनिए, उससे पहले कुछ कोई नहीं, पिछले साल से शुरू हुआ। हमारे हाँ आला हजरत की किताब से लेकर 150 साल से 125 साल से आला हजरत की किताब है, और उसके पहले हमारे अल्लामा फजल हक खैराबादी, यानी हर जमाने में, आज पिछले साल से शुरू हुआ बोलकर आपका कहना है। आप खुद तहकीक कीजिए, हमारे उलमा के भी बयान सुनिए, क्योंकि आज तक आपने सिर्फ देवबंदी उलमा का बयान सुने हैं, हमारे उलमा का बयान नहीं सुने। हमारे उलमा के बयान, मेरा बयान है और मेरे बड़े बड़े उलमा का बयान है, कब्र पे जाके वहाँ कब्रिस्तान में सिजदा करना, तवाफ करना, और औरतों का भीड़ इकट्ठा करना, बाजा गाजा कव्वाली, ये सब के सब हराम है, टोटल हराम है। ये जो मैंने अभी बताया ये सब हराम है।
हमारे उलमा, एक बार नहीं मैं 100 बार बयान कर चुका हूँ। अब मेरे पास तलवार है क्या? आपने कर दिया, मैं तलवार लेके जाके वहाँ सबको कत्ल कर दूं क्या? बोलिए आप। नहीं तो मेरी बात तो सुनिए, मैं क्या कर सकता हूँ? बयान कर सकता हूँ क्या और क्या कर सकता हूँ? बोलिए। नहीं सुन तो लीजिए, जैसे आप मुझे फोन करके भी समझा रहे हैं, ये सब बातें इतनी आपने मुझे बताई है, ये सिर्फ आपने बताई, अच्छा लगा मुझे, आपके अंदर जज्बा है। लेकिन जो वहाँ काम कर रहे हैं उलेमा, जो भी कर रहे हैं इन मस्जिदों में, हमने तो आज तक कभी देखा नहीं यूट्यूब पर बैठ के वीडियो बनाई कि भाई देखिए मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वहाँ गलत हो रहा है ये। मैंने अपनी आंखों से देखा और मैं वहाँ इमाम था। बताइए, एक वीडियो दिखाइए आपको। हाँ, मैं मेरे बहुत वीडियो दिखाऊंगा। मैं खुद वहाँ एक जगह पे, सुनिए, इमाम साहब की बात की, एक वहाँ के इमाम की सुनो, वो हजरत अब मेरी जो हराम कमाई खा रहा है वो कभी हक बात आलिम की कदर नहीं करेंगे, और जो आलिम इज्जत रखते हैं वो अपनी इज्जत बचाकर वहां से निकल जाते हैं। लेकिन बहुत मजबूरी में, आप समझिए, मैं एक मिसाल एग्जांपल देता हूँ। एक मस्जिद में मैं इमामत कर रहा था, वहाँ बहुत जहालत भरी हुई थी। लोग मुझे कह रहे थे माशाअल्लाह आप जैसे अच्छे इमाम यहाँ आए हैं, यहाँ की जहालत दूर होगी। मैं बोला ठीक है, मैं जब तक बर्दाश्त कर पाऊंगा यहाँ की जहालत दूर करूंगा। तो वो इमामत करते जा रहा था, मुहर्रम आई, मुहर्रम में सब ताजिया बिठाने लगे। मैंने ताजिया के खिलाफ बयान दिया। बयान देते ही वहाँ के कमेटी, खुद सुन्नी कहने वाले लोग, मुझे ताजिया के खिलाफ बयान करने की वजह से इमामत से निकाल दिया। जब निकल गया तो जो लोग मुझे कह रहे थे कि हजरत आप आए तो यहाँ आपकी वजह से जहालत दूर होगी, तो वो लोग मुझे कहने लगे हजरत आपने अच्छा नहीं किया। मैंने कहा कौन सा अच्छा नहीं किया? बोले आपने ये ताजिया के खिलाफ बोलने की वजह से आपको निकाल दिया, तो ये अच्छा नहीं हुआ। आप अगर वहाँ रहते आहिस्ता 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 अंदर अंदर से लोगों को ताजिया के खिलाफ बयान देके आप हिकमत से काम करते, सुनिए ना, हिकमत से काम करते। सर मेरे को इतनी बात लिखना टाइम नहीं है ना, इसलिए मैं सुनिए ना, मेरे आपको कहने का शॉर्टकट मतलब जो है, वो बात हुई। यही काम अगर वहाँ के इमाम कर रहा है तो कौन सा गलत कर रहा है? हाँ, अब सुनिए, आपका कहने का मतलब ये कि जो इमाम साहब वहाँ हैं वो मजबूर हैं, ठीक है। हाँ। और ये इसलिए जो है वो इस चीज को बयान नहीं कर पाते। अब मैं आपको एक छोटा सा सवाल आपसे पूछूंगा और उसको अपने जहन में रखते हुए जवाब दीजिएगा बाद में। हाँ। कि ये सिर्फ प्रॉब्लम आप लोगों के साथ ही क्यों आ रही है? फिर देवबंदियों के यहाँ तो ऐसा नहीं होता। देवबंदी का इससे बड़ा प्रॉब्लम है। अरे सुन तो लीजिए, इससे बड़ा प्रॉब्लम है देवबंदी के यहाँ। यही तो मैं बोला कि हमारे यहाँ जो आवाम में हरामकारी है, बदकारी है, उसके खिलाफ हम बोलते हैं। देवबंदी तो बोलते ही नहीं। सुनिए, देवबंदी के तबलीग जमात वाले कितने बदकारी कर रहे हैं, उसके खिलाफ तबलीग जमात एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं। आज तबलीग जमात आपस में खून रिजी हो रही है। क्या कौन बोले अहले हदीस में प्रॉब्लम नहीं, देवबंदी में प्रॉब्लम नहीं? हमसे 10 गुना ज्यादा प्रॉब्लम उसके अंदर है, देवबंदी के अंदर, अहले हदीस के अंदर। सुन लीजिए हजरत, सुन तो लीजिए मेरी बात तो सुन लीजिए। हाँ। जब बैठ के वहाँ कोई गलत चीज बयान करता है, वो तबलीग वाला बंदा अगर मस्जिद में बैठ के करता है, तो इमाम साहब उसे फौरन बाहर का रास्ता दिखाते हैं, तुरंत। और ये मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा सकता हूँ, बिल्कुल अपनी आंखों से। बताओ कहाँ देखना है, दुनिया के किस कोने में देखना है आपने? मैं दिखाऊंगा आपको प्रैक्टिकल। एक चीज का सबूत दिखा रहा है, वैसे सबूत हमारे में भी आवाम। मैं जो बता रहा हूँ भाई, आपका सुन लिया मैंने, अभी आजान नमाज का टाइम हो रहा है। मैं आखिर ये बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम उसके अंदर, आपने 1000 प्रॉब्लम में से एक बात का आपने सबूत दिया कि इमाम ने टोका। पूरी बात सुनिए ना, पूरी बात सुनिए मेरी, आपको मैं पूरी बात सुनिए मेरी। बहुत लंबी आप भी बोलते हैं और मुझे बोलने नहीं दे रहे। मैं बोल रहा हूँ कि आप वहाँ देवबंदी उलमा की शिकायतें सुनिए। मौलाना सज्जाद नुमानी साहब तबलीग जमात के खिलाफ क्या क्या बोला है। मौलाना अंजर शाह कासिमी बेंगलोर के बहुत बड़ा देवबंदी आलिम, वो तबलीग जमात के खिलाफ क्या क्या बोले हैं। मुफ्ती समीरुद्दीन कासिमी, वो सुनिए, आपको पता चलेगा कि देवबंदियत में क्या चल रहा है। आपको पता ही नहीं, रात दिन हमारी बुराई सुनते हैं ना, इसलिए आपको सारे हमारे खिलाफ बातें पता है, देवबंदियों के खिलाफ आपको पता नहीं। मैं भेजूंगा आपको। ये आपके जहन में है, मैं किसी की बुराई सुनता ही कोई नहीं ना, मेरे पास तो इतना टाइम ही नहीं है कि मैं किसी की बुराई सुनूं भाई। मैं नहीं सुनता बुराई। आप तो इतनी देर से जो बुराई बयान कर रहे हैं, तो सुन के तो बयान कर रहे हैं। ये तो आप जैसे लोगों का काम है, चलिए आप कबर पे, मजार पे जो कुछ हो रहा है उसके ताल्लुक से मैं इंशाल्लाह फिर आपसे बात करूंगा। अभी नमाज का टाइम हो रहा है, ठीक है? नमाज का टाइम हो रहा है, फोन रखता हूँ। अभी आपका नंबर लेके मैं बात करके आपको समझाऊंगा।